Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. अच्छा, हम सर का वेट कर रहे हैं, सर आ रहे हैं। तब तक जो है हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रो के साथ। उसके बाद फिर है कि हम लोग जब तक सर आते हैं थोड़ा बहुत कोई एक्टिविटी कर देते हैं, फन एक्टिविटी, ताकि अब सब जो है एक्टिव रहें। और इतनी देर में है सर और बाकी मेंबर्स भी ज्वाइन करते हैं। तो बस सर हमारे पास 2 से 3 मिनट में सर आ रहे हैं सर। तो फर्स्ट बार आई थिंक मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, जो बंदा इसमें चाहे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब। आई थिंक सब इसमें पार्टिसिपेट करें तो बेहतर है। तो मैं जानना चाहूंगा कि हर बंदा अपनी हॉबी बताए, क्या हॉबी क्या है। मैं खुद से शुरू करता हूँ पहले। मेरी हॉबी जो है वो, पहली हॉबी तो है बुक रीडिंग। गो के जो अब छूट गई है, क्योंकि एजुकेशन में आने के बाद बहुत कम बंदे होते हैं वो हॉबीज कंटिन्यू कर पाते हैं। हाँ, एक हॉबी जो मैंने कंटिन्यू की अभी तक वो है सोना हॉबी। ये वाली हॉबी है जो मैं मुकम्मल तरीके से पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बाकी तमाम जो है वो छूट चुकी है। अच्छा, इट्स सब बेसिकली फन फैक्ट। अच्छा, इसके अलावा अब कोई बंदा आप इससे जो है वो कोई अपना अपनी कोई हॉबी शेयर करना चाहता है, या वैसे कोई फन फैक्ट, अपने कोई खास खसूसियत की काबिलियत या कोई अपनी अचीवमेंट, ताकि बाकियों के लिए भी एक तो मोटिवेशन हो सकती है वो, सेकेंडली आप एक चीज कुछ और जानने का मौका मिलेगा। एनीवन एल्स? All right, I'll go next. So, my hobby is doing arts and playing table tennis in my free time, which is the most of the time I do that. So, I would nominate someone else. I would nominate Abdul Kareem, if you can tell your hobby. Okay, so hello, assalamu alaikum everyone. This is Abdul Kareem Shahbaz. I'm the National Vice President for Finances. Okay, so regarding hobby, it would be, I think, painting, scribbling, more of that. The painting is literally so less that I do once I get into MBBS, but yeah, whenever I get a chance, I do paint. Apart from that, scrolling social media is one of my hobby that I do on a regular basis. Okay, so I would be nominating Haram Altaf. Kareem, can you please repeat what I have to mention? You have to introduce yourself and you have to tell any hobby of yours. Okay, thank you. I'm Haraman Daf, President MSF Pakistan, and my hobby is painting. Next, I want to mention Amina Fatma. Amina, are you there? Okay, so next person is Aisha Anwar. Yaz Ahmed. Yes. I think he's a Professor Sayaz. Ali Gondad. Yes. Will you please introduce yourself and any hobby or achievement of yours? Um,
One of my hobbies is playing online games. I really like to do esports, and one of my achievements is being an operational manager in one of the companies. Okay, that's good. That's fine. That's great. But next, you want to mention anyone else? No, it's fine if you do so. No problem. Guys, this is open-ended. Anyone can volunteer. खुल के बता दो. You can either use Okay, the chat box as well. Danish here, and one of my hobbies is to wandering alone and enjoying my own company. Dr. Adil, can you kindly ask sir how much more time does he need? Asked him. He said 2 to 3 minutes. He'll be there, inshallah. All right. And secondly, I want to say that अगर किसी बंदे ने कोई ऐसा काम किया है रिसर्च में या someone is doing a research project or did it, he or she may share his or her experience with us. This will guide us, help us to make a group research. That's our aim of the activity, to make research groups. It will guide us and help us in making such groups. Anyone else who did a research or is doing? Right. Am I audible? यस Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम, आप कौन बोल रही हैं? जी, Assalamu alaikum, sir. I am Minahil bint Tariq, National Officer for Research Exchanges. I'll quickly give an interview and then hand over the session to you. ओके, आप ये बताइए कि आप किस कॉलेज से हैं? जी, I'm from Rashid Latif Medical College, Lahore. राइट। अच्छा, कुछ प्रोटोकॉल हम तय कर लेते हैं। एक तो आपने रिकॉर्ड कर रहे हैं आप इसको, प्रोग्राम को, इस सेशन को? जी, जी सर, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और अच्छा, ये बाकी आपके साथ लोगों के लिंक माइक ऑन होंगे और वीडियोस भी उनकी ऑफ होगी। मुझे शुड आई कीप माय वीडियो ऑन या इसको मैं ऑफ कर दूं? So जैसे आप कंफर्टेबल हैं, if you want to turn on your video then you can. Yes, sir, हम देख पा रहे हैं। Yes. चलिए, दैट्स ग्रेट। जी, it's visible. अच्छा, एक तो आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको? Yes, sir, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, ओके, टू स्टार्ट विद हमारे पास टाइम क्या हो गया अभी? सर 5:19। अच्छा, साथ-साथ मैं लोगों को एडमिट करूंगा, ऐसा ही है? यस Yes, सर, sir. लेकिन सर अगर आप कंफर्टेबल है तो आप मुझे होस्ट बना दें, मैं ऐड करती जाऊंगी। यू कैन स्टिल शेयर द स्क्रीन। नहीं, तो आपके लिए होस्ट तो दो easy नहीं रहेगा, हो सकते, distract नहीं होस्ट होंगे। दो भी तो हो सकते हैं ना। आप सर होस्ट ये अनपेड वर्जन है एक्चुअली, सो
अनफॉर्चुनेटली एक ही होस्ट हो गया। चले मैं ऐड करता जाऊंगा, कोई मसला नहीं। चलो ठीक, थैंक यू। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू स्टार्ट विद, पहले तो ये है कि ये जो सेशन है ये अपने मुकम्मल होने के बावजूद इसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज रह जाएंगी। और आप लोग क्योंकि रिसर्च से आप इतनी दिल लगी से और इतनी एफर्ट से आप रिसर्च के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। इसलिए मैंने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस और अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख दिया है। अगर आपको किसी किस्म की ऑन गोइंग कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो मैं ज़रूर करूँगा। दूसरी बात है कि ये सेशन पहला सेशन है, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं इसमें तो हमें और सेशंस करने पड़ेंगे। साइनॉप्सिस क्या है, प्रपोजल क्या है, और प्रोजेक्ट क्या होते हैं, फंडिंग प्रपोजल क्या होती है, ये देखें बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर आज हम साइनॉप्सिस पे बात करेंगे। प्रपोजल और साइनॉप्सिस का थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बताऊंगा, और हम इस पे ही बात करेंगे तो हमारे पास टाइम इस पे भी काफ़ी लग जाएगा, आपके सामने है सब कुछ। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस आई मीन जर्नी ऑफ रिसर्च, यू शुड रिमेन इन टच विद मी। और आप मुझे कहेंगे तो मैं एक ख़ास वक्त तक आपके साथ बगैर किसी अपने बेनिफिट के आपके लिए काम करता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आपका भी कमिटेड होना ज़रूरी है। दूसरा मैं जो है, और मैं ये चाहूँगा कि ये जारी रखें क्योंकि ये मैं डेफिशिएंट काम नहीं करता। अगर एक मैंने आज शुरू किया टॉपिक और मुझे लगे कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग मुझसे बेनिफिट लेना चाहते हैं वो ले नहीं रहे या फिर वो आधे में कहीं छोड़ गए हैं, तो मुझे फिर उस पे अफसोस होता है। तो आई होप कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरी ये बात है, और मेरी तरफ से वेलकमिंग है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मौजूद हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ टाइम। ठीक है, थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा मेरी फिजिबिलिटी पे और मेरी अवेलेबिलिटी पे, लेकिन मैं अवेलेबल हूँगा। दूसरी बात है, मैंने अपने कॉन्टैक्ट वगैरह भी दे दिए ऊपर, और ये है कि आई वुड बी बायलिंगुअल इन माय डिलीवरी ऑफ द स्पीच लेक्चर और सेशन व्हाटएवर यू कॉल इट, ताकि लोगों को समझ आए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी, और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की इतनी डाइवर्सिटी है कि लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स भी लोगों को होते हैं, जो कि मैंने फेस किया कि व्हेन यू स्पीक कम्प्लेक्स इंग्लिश सेंटेंसेस एंड दे हार्डली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग देम। तो इसलिए मैं जो है उर्दू अंग्रेज़ी का हाइब्रिड जो है वो यूज़ करूँगा। और साथ साथ मुझे वैसे ये टास्क आपने दिया है ऐड करने का, थोड़ा सा तो डाइवर्ट होऊंगा इससे मैं, लेकिन ये है कि ये फिर चलता रहेगा। ठीक हो गया जी। तो अभी तकरीबन कितने लोग हमारे साथ हैं? 40 पार्टिसिपेंट्स है 40 जी। यस सर, 40 हो चुके हैं और आ रहे हैं मुझे। चलें जी, लेट वी स्टार्ट। आई मीन शुरू करते हैं। तो आपको मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? जी सर। ओके, लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ साइनॉप्सिस एंड प्रपोजल। इनके अंदर डिफरेंस क्या है? साइनॉप्सिस is basically a miniature, is a short form of a proposal. Synopsis एक छोटी चीज है, proposal एक बड़ी चीज है। proposal आमतौर पे हम फंडिंग लेने के लिए भी करते हैं, कि जब हमें फंड चाहिए होते हैं या हम कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी एनजीओ की, जो ये चाहते हैं कि हमें एक प्रपोजल दें कि हमारे ये मोटिव्स हैं, ये एम्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये गोल्स हैं, तो क्या आप ये गोल्स हमारे पूरे करने के लिए आप हमें कोई ऐसा प्रपोजल बना सकते हैं या सस्टेनेबल को काम कर सकते हैं जो कि कल को चलता रहे, या उनके कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो वो देते हैं आपको, और आपको वो टॉपिक भी देते हैं और आमतौर पे प्रपोजल का फॉर्मेट भी दे देते हैं। वो कहते हैं ये फॉर्मेट है हमारा, इसके तहत हमें जवाब दें। उस वक्त ये नहीं होता कि आप अपनी मर्जी की प्रपोजल लिखें, अपना मर्जी का फॉर्मेट यूज करें, आपको उनका फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, और बाज़ दफा वो कहते हैं कि आप अपनी मर्जी का फॉर्मेट दें। सो प्रपोजल और साइनॉप्सिस को लोग इंटरचेंज भी करते हैं एक दूसरे के नाम के साथ, लेकिन इसका जो डिफरेंसेस हैं वो सामने अभी आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम साइनॉप्सिस पे बात करेंगे, क्योंकि जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फाइनल ईयर के, आमतौर पे इनका प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जी साइनॉप्सिस लिखनी है, उस साइनॉप्सिस एक प्रोबेबल स्केच होता है, आउटलाइन होता है कि जो आपने आगे रिसर्च करनी। लेकिन अगेन अगर आपका बड़ा मकसद है और आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो वो बड़े सतह की साइनॉप्सिस होगी, और अगर आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स यंग एज में भी ये कोशिश करते हैं कि उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलें और वो बड़े लेवल पे काम करें, फंडिंग हो और बड़ी बड़ी प्रपोजल्स आती हैं, तो हाउ कैन दे मैनेज देमसेल्व्स एंड हाउ कैन दे बी साइंटिफिक इनफ कि वो इन प्रपोजल्स को या उन फंडिंग को हंट कर सकें। तो ये जो है, अच्छा साथ साथ मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट जरूर हूँगा क्योंकि मुझे
लोगों को एडमिट करना पड़ रहा है, तो फिर थोड़ी सी मेरी तवज्जो उधर जाएगी। सर लेकिन आप काइंडली मुझे एक दफा होस्ट बना के देखें। आई फील लाइक आप स्टिल स्क्रीन आप शेयर ये कर बताएं सकते मुझे होस्ट कैसे बनाना है, यहाँ पे बताइए मुझे क्या करना है, आपने इनवाइट करना है? मेरे नाम पे क्लिक करना है, उस पे आएगा मेक होस्ट। चलो ठीक है, मिनाहिल आप इंतजार हैं मिनाहल, ठीक है, जी जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठहरे जरा। आस्क टू स्टार्ट वीडियो मेक होस्ट, ठीक हो गया, मैंने आपको बना दिया है, आप यस कर दें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, यू मे प्रोसीड। आपने यस कर दिए? सॉरी। जी जी, अब आप बन गई हैं होस्ट। जी सर, थैंक यू। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि क्या मैं शेयर कर सकता, अगेन इफ यूर होस्ट आई कैन नॉट शेयर माई प्रेजेंटेशन देन, ये भी कोई इनका होगा ना मसला। आप समझ गई हैं बात मेरी? इफ जी यूर सर, डज होस्ट, एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? छोड़ दें, मैं उस परेशान, मैं उसको वैसे ही कह रहा हूँ कि मैं परेशान नहीं हूँ, मैं जारी रखूंगा, लेकिन आप लोगों को कहीं कहीं मैं महसूस होगा कि मैं थोड़ा एब्सेंट हूँ, तो एब्सेंट इसीलिए होऊंगा कि मैं लोगों को ऐड कर रहा हूँ। अब आप मुझे होस्ट बना दें दोबारा। सर बना दिए। चलें, डोंट वरी, परेशान ना हो आप, बस ठहरे। लोगों को चाहिए था कि टाइम पे वो आते, ये लोग बहुत, हमारे स्टूडेंट्स का यही तो आदत है कि अगर आप, मैं तो पहले मैं लेट हूँ, तो ये अभी भी लेट हैं। 43 पार्टिसिपेंट्स हैं लेकिन अभी तक आ रहे हैं। अच्छा, साइनॉप्सिस आपकी जो है 1500 से 2000 वर्ड्स की हो सकती है, ठीक है। प्रपोजल क्या होती है? डिटेल्ड प्लान ऑफ हाउ विल यू कंडक्ट योर स्टडी। ऑलमोस्ट प्रपोजल जो है वो इतनी डिटेल्ड होती है कि अगर आप उसका कंटेंट्स देखेंगे तो उतने ही हो जाते हैं जितने एक थीसिस के हो सकते हैं। गोया कि प्रपोजल अगर 300 सफ़ों की है तो आपकी साइनॉप्सिस जो है वो सिर्फ 2000 वर्ड्स की है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि प्रपोजल में और साइनॉप्सिस में क्या फर्क है। प्रपोजल मुकम्मल स्टडी का एक एक प्लान होता है, उसमें सिर्फ आपके रिजल्ट्स नहीं होते, आपका एनालिसिस नहीं हुआ होता, जो कि साइनॉप्सिस में नहीं होता। लेकिन प्रपोजल जो है वो डिटेल्ड प्लान है। इसका भी जब प्रपोजल पे हम बात करेंगे तो इस पर एंड पे थोड़ी चीजें और वाजे होंगी, लेकिन अभी हम आपको बेसिक डिफरेंस जो है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। पर जो आपकी साइनॉप्सिस है इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टडी के। सॉरी, ये एक और काम हो रहा है कि मेरी स्लाइड्स भी पूरी नजर नहीं आ रही, इसकी भी समझ नहीं आ रही, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इतना साइज रखूं तो फिर भी आप ओके हैं? यू आर ओके विद इट? यस सर, ओके। ओके, सो सबसे पहले साइनॉप्सिस में आ जाता है आपका टाइटल, ठीक है जी। टाइटल शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। और आमतौर पर टाइटल आप लिखते हैं जब आप साइनॉप्सिस पूरी लिख लेते हैं, टाइटल एंड पे होता है। टाइटल शुड बी क्रिस्प, टाइटल शुड बी रिफ्लेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी। आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, आप क्या चाहते क्या हैं, आपकी रिसर्च का मकसद क्या है, तो टाइटल क्रिस्प होना चाहिए। टाइटल में आप एब्रीविएशंस यूज नहीं कर सकते। टाइटल मैक्सिमम टू द पॉइंट होना चाहिए, और टाइटल शुड कॉरस्पॉन्ड टू योर रिसर्च जो आपने कर रहे हैं। It must be written after the whole synopsis has been written so that it is true representative of the plan. होता यह है कि ये जो टाइटल होता है साइनॉप्सिस का, ये हमेशा, अब ये भी आपको बताना है कि साइनॉप्सिस और आर्टिकल में क्या फर्क है। साइनॉप्सिस तो शुरू होती है, आर्टिकल आप उसमें से निकालते हैं। अभी वी आर बेसिक आप साइनॉप्सिस पे रहिएगा। जब आपने आर्टिकल राइटिंग की बात करनी है कि पब्लिश कैसे होता है आर्टिकल, वो और प्रपोजल और थीसिस ये टोटली सब अलग हैं। इनके अंदर मुमासलत जरूर है, देयर सो मेनी कॉमनैलिटीज इन सारी चीजों के अंदर, लेकिन अभी हम साइनॉप्सिस को डील कर रहे हैं और साइनॉप्सिस पे बात कर रहे हैं। इसलिए आपने इसको ये सोचना है कि वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट साइनॉप्सिस। तो साइनॉप्सिस जो है वो उसका जो टाइटल है वो एक टोटल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो आपने काम किया। ये नहीं कि काम कुछ और हो रहा है और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और टाइटल आपने और लिख दिया। मसलन अगर आप लिख रहे हैं प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन या प्रिडिक्टर्स ऑफ डिप्रेशन,
तो आपने डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रिडिक्टर्स ऑफ डिप्रेशन और प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वो आपके सब्जेक्ट में, आपकी रिसर्च में होना चाहिए। और प्रिडिक्टर्स के लिए आपने कौन से वेरिएबल्स यूज किए हैं? जैसे कि डिप्रेशन है तो उसके लिए वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? कोई शख्स, उसकी एज हो सकती है, जेंडर हो सकता है, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस हो सकती है, उसकी फैमिली, वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है या वो जॉइंट फैमिली में है, उसके बारे में ये हो सकता है कि वो विडो है, वो मैरिड है, वो डाइवोर्सी है, और बचपन में पेरेंटल लॉस जो होता है, जैसे कि बच्चे जिनका पेरेंटल लॉस बचपन में होता है और लेट लाइफ में वो डिप्रेशन के साथ मैनिफेस्ट करते हैं ओल्ड एज में। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं और ये प्रिडिक्टर्स हैं डिप्रेशन के। प्रिडिक्टर्स का क्या मतलब है? जो प्रिडिक्ट करते हैं कि इस बंदे को डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। अब हम प्रेवलेंस देख रहे हैं कि प्रेवलेंस वो भी हम खवातीन में देख रहे हैं, तो हम सिर्फ खवातीन पे बात कर रहे हो। इफ वी आर फोकसिंग एल्डरली पीपल, जेरियाट्रिक डिप्रेशन देख रहे हैं। फिर इफ वी आर वर्किंग ऑन द डिप्रेशन वर्किंग वुमेन, इन नर्सेज, ठीक है, इन गायनाकोलॉजिस्ट, इन डॉक्टर्स, तो फिर हमारा डेटा सिर्फ डॉक्टर्स तक महदूद होगा। सो हम अपने टाइटल में लिखेंगे प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन अमंग डॉक्टर्स ऑफ सर्विसेज हॉस्पिटल, प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन अमंग वर्किंग विमेन ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर मद्देनजर रखते हुए हम टाइटल को रखते हैं और इस तरह आप टाइटल देखेंगे। इसके लिए बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, लेकिन अगेन अगर हम एक एक जगह बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर हमारे पास टाइम कम हो जाएगा। तो टाइटल शुड बी क्रिस्प। दूसरी बात यह है कि जब भी आपको रिसर्च का काम करते हैं तो आप शुरू से ही बहुत ज्यादा माहिर नहीं हो सकते, हीरो नहीं हो सकते आप इस काम के। आपको शुरू में लोगों के साथ चलना पड़ता है, मशवरा लेना पड़ता है, तभी तो साइनॉप्सिस का जब डिफेंस होता है तो लोग बैठे होते हैं। सुपरवाइजर्स क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं सुपरवाइजर्स के वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको बताते हैं कि कैसे आपने आगे चलना है। हमारी ये मीटिंग 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी, फिर हम दोबारा आएंगे क्योंकि वो कह रहा है कि 10 मिनट रह गए हैं। इसके बाद आप लिंक दोबारा भेजेंगे और परेशान ना हो, हम आप जब तक मौजूद हैं, जब तक आपकी एंगेजमेंट है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन साइनॉप्सिस का टॉपिक हम कम से कम आज जरूर मुकम्मल करेंगे। अच्छा जी, ये टाइटल के बारे में बात हो गई कि टाइटल जो है क्रिस्प होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं उससे मुतल्लिका होना चाहिए। टाइटल के अंदर एब्रीविएशंस नहीं हो सकते। जैसे कि आप लिखते हैं, फर्ज करो CBT लफ्ज है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो ये पूरा लिखेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे CBT। या आप किसी भी और बीमारी जिसको आप एब्रीविएशन यूज करते हैं वो नहीं करेंगे, इसको डिस्करेज किया जाता है। अच्छा जी, टाइटल के बारे में बात हो रही है, अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइटल, ये टाइटल की एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे इसलिए रखी हैं कि आपको थोड़ी समझ आए। प्रेवलेंस ऑफ को-अकरिंग मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस इन द ऑटिज्म पॉपुलेशन, अ सिस्टेमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। अब ये एक टाइटल है कि मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं या मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं, जो मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग डिजीजेस हैं, वो ऑटिज्म की पॉपुलेशन में, ऑटिज्म को अभी डिफाइन करेंगे तो उसमें मैं लंबा चला जाऊंगा। ऑटिज्म को छोड़ दें, एक बीमारी है जो बच्चों में ज्यादा होती है, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं और ये जेनेटिक होती है। अच्छा, इन गो के इसके ऊपर अभी वर्क हो रहा है बहुत ज्यादा कि इसकी एक्चुअल रीजन क्या है। वन सस्पिशन इज जेनेटिक। इन द ऑटिज्म पॉपुलेशन, अ सिस्टेमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। सिस्टेमिक रिव्यू हम कहते हैं, ये अब आपको ये भी बताना मकसूद होगा और जो सेशंस हैं कि भाई स्टडी डिजाइन क्या होते हैं, सिस्टेमिक रिव्यू क्या होता है, मेटा एनालिसिस क्या होता है। तो सिस्टेमिक रिव्यू होता है कि बहुत सारी स्टडीज जो एक सब्जेक्ट के बारे में हुई हों उनका इकट्ठा उन्हें देखना, और मेटा एनालिसिस ये होता है कि उनके रिजल्ट्स को आपस में मर्ज करके टोटल रिजल्ट बनाना कि 10 स्टडीज इसमें हुई हैं, उनके रिजल्ट्स ये आए तो हम उनकी रिजल्ट्स की बुनियाद पे किस नतीजे पहुंचते हैं। और फिर जब मेटा एनालिसिस आप करते हैं तो वही चीज आपकी थ्योरी बन जाती है, वो किताबों में आ जाती है जो आप पढ़ते हैं। और याद रखें, ये जो किताबों में आप पढ़ते हैं इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च कार फरमा, ऐसे ही नहीं किसी एक बंदे ने काम करके लिख दिया हुआ। रिसर्च और कॉजल रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है और उसकी आखिरी हद जो है, टॉप हायरार्की, वो मेटा एनालिसिस है, और उसके बाद वो चीज थियरी बनती है और आपकी किताबों में आती है। दूसरा टॉपिक देखिए, प्रेवलेंस एंड ट्रेंड्स ऑफ यूरोलिथिएसिस अमंग एडल्ट्स। एडल्ट्स के अंदर किडनी स्टोन्स बनने के ट्रेंड्स और उनकी प्रेवलेंस क्या है।
कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, कौन क्या डाइट इस्तेमाल करता है, तो इसकी डिटेल्स में वो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे, लेकिन टाइटल इस तरह क्रिस्प होगा। देयर इज अनदर टाइटल, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिडिक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट फार्मासिस्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट। वो कौन सी चीजें हैं जो पेशेंट और फार्मासिस्ट के रिलेशनशिप को आपस में स्टैब्लिश करती हैं। यूके में और बाहर के कंट्रीज दूसरे जो हैं वहां पे फार्मासिस्ट भी अलाउ होता है कुछ चीजें देने के लिए, ठीक है, ऑन द ओवर द काउंटर वो दे देता है मेडिसिन, उसको अलाउ होता है, कुछ मेडिसिन वो नहीं दे सकता। तो वही कह रहा है कि आप उनको प्रिडिक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करें जहाँ पेशेंट और फार्मासिस्ट का रिलेशनशिप मुतासर होता है, बनता है या अच्छा होता है। फिर टाइटल है इफेक्टिवनेस ऑफ पेरेंट रिलेटेड इंटरवेंशंस ऑन साइबर बुलिंग अमंग एडोलेसेंट्स। जो एडोलेसेंट्स होते हैं नए लोग, वो जब स्कूलों कॉलेजेस में जाते हैं तो उनको बुलिंग होती है, लोग तंग करते हैं, और ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू है। मेरा तारुफ ये है कि मैं सीबीटी प्रैक्टिशनर हूँ एंड आई प्रैक्टिस सीबीटी एंड हिप्नोसिस। आई एम सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट। आई टुक सर्टिफिकेशन फ्रॉम अमेरिका, जो नेशनल गिल्ड ऑफ हिप्नोटिस्ट है, और आई वर्क ऑन सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में प्रैक्टिस करता हूँ, और ये सारे केसेस जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं, दिस इज माय फोकस। तो आप जरूर मुझे देखिएगा, डॉक्टर अब्रार उमर एंड काउंसलिंग मेरा पेज है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, इधर तो मैंने नहीं लिखा। तो उस पेज पे आई एम डूइंग, पेज पे मैं मौजूद हूँ, लेकिन काउंसलिंग में ओलाडाक पे हूँ, मरहम पे हूँ, और रिलेशनशिप इश्यूज को करता हूँ। और मेरी जो पीएचडी है वो भी सीबीटी पे है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर डिप्रेशन, फॉर फोबिया, फॉर सब्सटेंस अब्यूज। तो मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ। और ये जो आखिरी टॉपिक है ये मेरी प्रैक्टिस से मुतल्लिका है, तो तभी मैंने इस पे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि इफेक्टिवनेस पेशेंट रिलेटेड इंटरवेंशंस, पेरेंट रिलेटेड इंटरवेंशंस, सॉरी। तो पेरेंट्स कौन कौन सी इंटरवेंशंस हैं, ये कम से कम अपने स्टूडेंट्स को जरूर कहा करें कि अपने टाइम का ख्याल रखें। इस तरह अपनी मर्जी से जब मर्जी आ जाना, दिस डजंट लुक नाइस एंड दिस इज अ बिट इररिस्पांसिबल बिहेवियर। इसे लगता है कि आप ऐसे ही आ रहे हैं, कार्रवाई डाल रहे हैं, और आप लर्निंग का कोई शौक नहीं है, फिर वो बंदे का जज्बा भी वो नहीं रहता सिखाने वाले का। जो पेरेंट्स हैं वो कौन सी, ये मैं उर्दू में इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है कि कोई बंदा जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है, जिसको समझ नहीं आती, उसको इंटरवेंशन की भी समझ नहीं आती, उसको पेरेंट रिलेटेड लफ्ज की भी समझ नहीं आती, एडोलेसेंट्स का भी नहीं पता लोगों को। मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं वाइवा लेता हूँ, तो मैं किसी को हेल्थ की डेफिनेशन पूछूं, नहीं आती, इफेक्टिवनेस का मतलब नहीं आता। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, तो मकसद ये कि उनको भी साथ लेके हम चलें। तो पेरेंट रिलेटेड इंटरवेंशन, अदरवाइज मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलूंगा तो कोई मुझे लगेगा कि मेरा मैसेज बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच सका। सो इफेक्टिवनेस ऑफ पेरेंट रिलेटेड इंटरवेंशंस। वालदेन वो कौन सी इंटरवेंशंस कर सकते हैं? इंटरवेंशन का मतलब है तब्दीली लाना, चेंज लाना, कोई एक्सपेरिमेंट करना, कोई चीज करना। जैसे इंटरवीन से निकला, इंटरवीन से नॉन है, सो इंटरवेंशन ऑन साइबर बुलिंग, कि ये जो नेट के ऊपर लोग बुलिंग करते हैं, और इस बुलिंग के नतीजे में बच्चे जो हैं वो उसमें, और लड़कियां खासतौर पे, और बच्चे और एडोलेसेंट्स, जितनी इसमें मेल्स फीमेल्स, वो साइकोलॉजिकल उसमें चले जाते हैं, क्राइसिस में। तो उसको वो ये कह रहे हैं कि कैसे हमने इफेक्टिवनेस क्या हो सकती है कि हम पेरेंट्स लेवल पे कुछ इंटरवेंशन लाएं। मसलन पेरेंट्स अपने बच्चों को के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप करें। सो अगेन ये स्टडी है, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि टाइटल्स कैसे हैं। किसी चीज में डिटेल में जाएंगे तो लॉट ऑफ टाइम, 3 घंटे 4 घंटे भी कहीं नहीं गए हुए। सो मैं आपको ये कहूंगा कि आज साइनॉप्सिस के बाद इसको जारी रखें सिलसिले को, और आपको कोई कहीं पे भी मसला आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो आप मुझे शेयर करें। मैं वैसे भी काउंसलर हूँ, तो मेडिकल कॉलेज में जो रिसर्च है इस हवाले से, तो चलो अभी आप रिसर्च के हवाले से मेरे साथ हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीबीटी फॉर डिप्रेशन एंड फोबिया एंड ऑल दिस, वो अलग टॉपिक है। लेकिन हम इस वक्त आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आई एम ऑल अवेलेबल फॉर यू टू गाइड यू, क्योंकि रिसर्च पे काम नहीं हो रहा। अगर पाकिस्तान में मेरी वजह से कोई लोग मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं तो इट वुड बी अ ग्रेट डील। A title page of synopsis should include the title of the research project. टाइटल पेज कैसे होना चाहिए? मैं पेज आपको एंड पे दिखाऊंगा भी। देखें, जो पेज होता है ना आपका, जिसके ऊपर आपने टाइटल लिखा है, फर्ज करो प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन अमंग डॉक्टर्स ऑफ सर्विसेज हॉस्पिटल, मैंने कुछ टाइटल है, और तो आपने टाइटल पे पेज लिखा है, रिसर्च प्रोजेक्ट के नीचे आपका नाम होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, सुपरवाइजर का नाम होगा, और जिस जगह पे आप ये काम कर रहे हैं, और उस डेट को जिसको आपने सबमिशन करवानी है, सारा कुछ आपके टाइटल पेज पे होगा। और हर इंस्टीट्यूशन अपना एक फॉर्मेट बनाता है। हर मेडिकल कॉलेज, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में हमारा फॉर्मेट है, जहाँ पहले था मैं वहाँ पे इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज में हमारा फॉर्मेट था, उसके ऊपर एक मोनोग्राम होगा, एक साइड पे टाइटल पेज पे आपने टाइटल लिख दिया पेज के ऊपर,
और इसके बाद आपने नीचे जो है अपना नाम लिखा और फिर सुपरवाइजर का नाम और फिर आपने लिखा कि कहाँ पे आप ये काम करते हुए कर रहे हैं, किस कॉलेज में हैं, और फिर आपने मंथ और ईयर ऑफ सबमिशन करके तो आपने कहा ये मैंने सबमिशन किया। इसके बाद साइनॉप्सिस की, इसके बाद आपका एक लिस्ट ऑफ कंटेंट्स होती है। इसमें एक्नॉलेजमेंट भी होती है। अगर आप एक्नॉलेज करते हो कि मैं फलां के नाम ये करता हूँ, फलां की मेहनत से ये काम हुआ, मेरे सुपरवाइजर ने बड़ी मेरी मदद की, और इसके बाद आप लिस्ट ऑफ कंटेंट्स लिखते हैं। कंटेंट्स में फिर आप लिखते हैं टाइटल पेज और टाइटल और इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ये सब कुछ आप साथ साथ लिखते हैं। उसके ऊपर अभी मैं बात नहीं कर रहा कि वो कंटेंट, वो भी हिस्सा है साइनॉप्सिस का। ठीक हो गया जी। ये टाइटल पेज है आपका। टाइटल पेज की बात हो गई, इस पे ऊपर होता है, वैसे तो क्वेश्चन आंसर भी होने चाहिए, लेकिन एंड पे अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि अभी हम अगर ये करेंगे तो फिर टाइम ही टाइम लगेगा। डिपेंड करता है कि आप, आज हम साइनॉप्सिस को हम फिर भी कर सकते हैं, साइनॉप्सिस पे क्वेश्चन आंसर सेशन का अलग सेशन कर सकते हैं इफ यू आर विलिंग। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा कि इंट्रोडक्शन आपके टॉपिक का, जो आपने टॉपिक चुना है। अब यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी के जहन में डिप्रेशन आ रहा होगा, किसी के जहन में एंग्जाइटी स्ट्रेस आ रहा होगा, कोई चाहेगा कि मैं टाइफाइड फीवर के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस है उस पर बात करूं, कोई कहेगा रिलेशनशिप सन बाथ का विटामिन डी लेवल के साथ क्या है, कोई कहेगा कि मैं तो रिलेटिव रिस्क मालूम करना चाहता हूँ, किसी की ये ख्वाहिश है कि मैं जो है ना देखूं कि इंटरवेंशन अगर हम करते हैं नर्सिंग केयर की और नर्सेज की कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को ट्रेनिंग करते हैं तो उसके नतीजे में क्या नर्सेज जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनके साथ उनकी ट्रीटमेंट बेहतर होती। कोई ये चाहेगा, जैसे हमने टॉपिक देखा, कि अगर हम अपने बच्चों को के साथ पेरेंट्स कोई ऐसी इंटरवेंशन करते हैं तो उसके नतीजे में साइबर बुलिंग से उन्हें बचाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये चाहते होंगे कि नहीं जी नहीं, हम तो ये वर्क करना चाहते हैं कि एल्डरली लोग जो हैं वो उनकी अल्जाइमर और सॉरी डिमेंशिया के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, इसके क्या प्रिडिक्टर्स हैं, कुछ इससे भी
जी, हम शुरू करते हैं. So, introduction should contain brief background of selected topic. जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, आपने उसके हवाले से इंट्रोडक्शन में उसका ब्रीफ बैकग्राउंड लिखना है. आपने बताना है कि ये है क्या. मसलन आपने सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस पे बात कर रहे हैं, आप एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम पे बात कर रहे हैं, आप एंटेरिक फीवर पे बात कर रहे हैं, कॉलरा पे बात कर रहे हैं, लंग कैंसर पे बात कर रहे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी पे बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू राइट द बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक. इसकी डेफिनेशन कि ये है क्या. सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस इज दिस. लेकिन ये कहाँ से लिया. आप पास से कोई बात नहीं कर सकते इंट्रोडक्शन में. याद रखिए कि इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू में बगैर रेफरेंस के आप कोई बात नहीं कर सकते. साइनॉप्सिस में आपका जो नॉलेज है आपको उसको रिफ्रेज करेंगे, अपनी जबान में लिखेंगे, अदरवाइज वो प्लेजरिज्म के जुमरे में आ जाएगा. आप उस पर कॉपी अगर करेंगे, उठा के कहीं से भी लिख लिया, तो वो कॉपी पेस्ट जो है वो प्लेजरिज्म हो जाएगा और वो आपका आर्टिकल छपेगा नहीं. अगर कहीं छप गया तो बाद में उसको रद्द कर देंगे वो. सो इंट्रोडक्शन में आपने फर्ज करें कि हम एंटेरिक फीवर ले लेते हैं. आप एंटेरिक फीवर को कहेंगे कि एंटेरिक फीवर इज दिस रेफरेंस फलां फलां आर्टिकल, फलां फलां किताब, फलां वेब पेज, WHO, और वो रेफरेंस आप आखिर में देंगे, उसकी नंबरिंग देंगे और वो उसका वैंक्यूवर स्टाइल में आप उसको करेंगे. और रेफरेंस कैसे देना है उसके, वो रेफरेंस का जब हमारा आएगा पोर्शन तो हम उस पर बात करेंगे. सो बैकग्राउंड में या इंट्रोडक्शन में यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ योर टॉपिक जिस पे आप काम कर रहे हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन तो आप डिप्रेशन पे बात करेंगे कि डिप्रेशन इज नोन एज दिस इज दिस, साथ रेफरेंस लिखेंगे आप उसका. फिर आप कहेंगे कि डिप्रेशन जो है ना, फिर डिप्रेशन के हवाले से जितनी बातें कहीं कहीं कही गई हैं, हाँ जी डिप्रेशन बहुत कॉमन है फीमेल्स में, उसकी भी कोई आपके पास सबूत होना चाहिए. एल्डरली डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, वो भी कुछ लिखना चाहिए. और अगर आपको टिपिकली टॉपिक ही आपका एल्डरली डिप्रेशन है या टिपिकली टॉपिक ही आपका एड्स, प्रेवलेंस ऑफ एड्स या प्रेवलेंस ऑफ आप कह लें कि HIV अमंग ट्रांसजेंडर्स है, तो फिर आप ट्रांसजेंडर्स के पहले HIV को डिफाइन करेंगे होती क्या है, HIV कहाँ से आई, उसका थोड़ी सी तारीख बताएंगे कि 1980s में वो HIV कैसे आई. जब वो होमोसेक्सुअल्स को स्टडी कर रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को निमोनिया और अनडिफाइंड कम्प्लेक्स डिजीजेज हैं जिसकी समझ नहीं आ रही. तो फाइनली दे रीच्ड कि ये तो कोई और दुनिया है, और उन्होंने उस वायरस को डिस्कवर कर लिया जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहलाता है. तो ये सारा उसके बारे में, एड्स के बारे में आ जाएगा. फिर अगर आप ट्रांसजेंडर्स में एड्स की बात करें तो उसके हवाले से आएगा कि ट्रांसजेंडर में एड्स ये. अच्छा, ये कहने के बाद फिर आपने उसके अंदर साबित करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडी जो हम कर रहे हैं, और फिर ये भी साबित करना है कि उससे पहले उसके ऊपर कोई इतना ज्यादा काम नहीं हुआ, या हुआ भी है तो आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं. और आखिर में आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही अपनी स्टडी का, लेकिन ये सारा आपकी साइनॉप्सिस विद इन 2000 वर्ड्स में हो रही है. आपने डिवीजन इस तरह करनी है कि कोई इसके अंदर वो कदगन नहीं कि इतनी साइनॉप्सिस का इंट्रोडक्शन इतना होना चाहिए, बैकग्राउंड इतना होना चाहिए. हर जो आर्टिकल पब्लिश होता है उसमें हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं. अभी मैंने अपना आर्टिकल W कैटेगरी के इंटरनेशनल जर्नल में छपवाया है, तो वहां पे हमारे तो 27 सफ़ों का वो आर्टिकल गया, क्वालिटेटिव स्टडी थी. वो हर जर्नल की अपनी मर्जी होती है. अभी साइनॉप्सिस की बात हो रही है. वी आर अगेन पर्टिनेंट एंड स्पेसिफिक अबाउट साइनॉप्सिस, और वो भी हम बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में जो साइनॉप्सिस लिखी जाती है. और
जो साइनॉप्सिस CPSP लिखवाता है पाकिस्तान में। ये जो CPSP का इदारा है, जो कि डॉक्टरों का इदारा है, वो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टोटली जो CPSP चाहता है वो है, जो FCPS के दौरान पार्ट 1 के बाद आपको बनानी पड़ती है। दूसरी जो आपके कॉलेजेस में 4th ईयर के लेवल पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक हो गया जी। तो इंट्रोडक्शन में आपने पहले अपनी उस चीज का जिसका टॉपिक आपने रखा हो उसका बैकग्राउंड बताया, विद रेफरेंसेस। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे, रेफरेंस दे रहे हैं, रिफ्रेज कर रहे हैं, जो कुछ आपने इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं और साथ रेफरेंस दे रहे हैं। फिर ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी को बताएगा इंट्रोडक्शन, फिर ये बताएगा कि आपकी पर्पस ऑफ स्टडी क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपके रिसर्च वर्क की जो आप करना चाहते हैं। इट शुड प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टू इंट्रोड्यूस द एरिया ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, कि हम ये करने लगे। दिस स्टडी शोज, दिस स्टडी विल बी कंडक्टेड इन रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल टू नो दिस। ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया। अच्छा, इंट्रोडक्शन अब क्या होता है मजीद, जिस स्टूडेंट को और जिस बच्चे को या जिस खातून और मर्द को रिसर्च से मोहब्बत है वो आर्टिकल तो पढ़ेगा। तो जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन की ये जो डेफिनेशंस मैंने बताई हैं, इसकी ट्रू पिक्चर तो आर्टिकल है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा। अब आप इस लेंस से देखेंगे कि इंट्रोडक्शन की जो बात हुई है, इसी लेंस से आप इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू में क्या फर्क है। अदरवाइज जब आर्टिकल पब्लिश होता है तो उसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा होता है, जिसके अंदर लिटरेचर रिव्यू भी शामिल होता है, या उसके अंदर लिखा होता है बैकग्राउंड। बट अगेन मैंने आपको कहा है कि ये साइनॉप्सिस की बात हो रही है, आर्टिकल कैसे पब्लिश होता है टोटली एक अलग सेशन है। प्रपोजल राइटिंग फॉर फंडिंग एक अलग सेशन है। डोंट कंफ्यूज प्रपोजल विद साइनॉप्सिस एंड साइनॉप्सिस विद आई मीन इंट्रोडक्शन विद लिटरेचर रिव्यू। अच्छा जी, आगे हम चलने लगे हैं लिटरेचर रिव्यू पे। लिटरेचर रिव्यू क्या है? जो टॉपिक आपने चुना है इसके ऊपर दुनिया में जहां कहीं काम हुआ है, आप उसको गूगल स्कॉलर पे जाके, पबमेड पे जाके, रिसर्च गेट पे जाके, ये सारे जो बड़े बड़े रिसर्च इंजन हैं उन पे जाके आप ढूंढेंगे कि मैंने जो टॉपिक चुना है इसके ऊपर क्या काम हुआ। अगेन अगर हम ये कर रहे हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी का ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में क्या रोल है, तो यू हैव टू एक्सप्लोर। और रिसर्च कहते क्या है? रिसर्च का मतलब है फ्रॉम नोन टू अननोन, अ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। जो आपको पता है उससे आगे का सफर। दुनिया में किसी को पता है तो उससे आगे का सफर असल में तो। लेकिन आपको पता है कि हम मेडिकल कॉलेज या नीचे लेवल पे पाकिस्तान में हम वही काम करते हैं जो पहले ही हो रहा होता है। और इसकी हमारे पास जस्टिफिकेशन ये होती है कि इफ यू आर इन लाहौर तो आप ये कह सकते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन इन एल्डरली पीपल ऑफ लाहौर। और अगर पहले भी किसी ने किया हुआ है तो आप कहेंगे जी कि इन 2024 में मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, शायद इसमें मुझे नई फाइंडिंग्स मिले। अदरवाइज PhD लेवल पे जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो नहीं होगा कि आप दोहराएंगे काम, वो जो पहले ही हो चुका है वो तो कोई नहीं है। इसलिए रिसर्च की भी अपनी अपनी सतह है कि आप किस सतह की रिसर्च कर रहे हैं, और ये भी कि आप कितनी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, और ये भी कि आपकी रिसर्च का स्टडी डिजाइन क्या है। अगर प्रेवलेंस है तो सबसे थका हुआ ये डिजाइन, और अगर कोहोर्ट स्टडी है, कुछ केस कंट्रोल है, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अगर आप RCT पे जा रहे हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, बहुत अच्छा है। और अगर आप मेटा एनालिसिस कर रहे हैं जो हम में से कम लोग करते हैं, तो फिर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सो लिटरेचर रिव्यू आपके टॉपिक के हवाले से दुनिया में जो कुछ हुआ है, रिव्यू ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर शोइंग द वर्क डन प्रीवियस इन द एरिया ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च, जिस पे आप काम कर लेंगे। Essential to plan further research effectively, the information given in the review should be supported by references. इसके भी आप रेफरेंस देंगे, इसमें भी कोई बात आप अपने पास से नहीं कर सकते, सारी बातें आपने उठानी हैं। मैं एडमिट कर रहा हूं साथ साथ लोगों को, सारी बातें आपने कहीं से लेनी है जो कि पहले हो चुका है काम। अच्छा, ये जो पहले काम हो चुका है, अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा, अमेरिका में भी हुआ काम, पाकिस्तान में हुआ, इंडिया में हुआ, चाइना में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, हम क्या करें? मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो जेन्युइन है। वैसे तो उठा के लोग यहाँ पाकिस्तान में जर्नल्स आर्टिकल भी छाप देते हैं, और याद रखें कि पाकिस्तानी जर्नल्स के छपे हुए आर्टिकल्स बाहर उनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ इम्पैक्ट से आ चुके हैं कि आप बाहर आके कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करें। इससे आप अंदाजा लगाएं कि क्वालिटी क्या होती है। सो अगेन कमिंग बैक टू साइनॉप्सिस, आप लिटरेचर को पूरे को सर्च करेंगे, और लिखने का तरीका ये है
कि सबसे पहले आप दूर दराज जो मुल्क हैं, कंट्रीज हैं, जियोग्राफिकली आप उनका लिटरेचर उठाएंगे, अमेरिका, अफ्रीका, और उससे आते हुए आप यूरोप की तरफ आएँ, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, और फिर आप आते आते अपने इलाके में आएंगे, और आपका इलाका आपकी नेबरहुड में चाइना है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिर आप यहाँ पे आएंगे। सो आप कैसे करेंगे कि ऊपर से एक चीज उठाएंगे बाहर से और लिटरेचर को नीचे आते जाएंगे और आके आप नैरो डाउन होते जाएंगे टुवर्ड्स योर ओन एरिया, टू योर ओन जियोग्राफी। सो आपने फर्ज करो कि एड्स के बारे में, एड्स ट्रांसजेंडर पे आप देख रहे हैं कि उनके मसाइल हैं, एड्स के जो HIV इन्फेक्टेड ट्रांसजेंडर्स हैं उनके मसाइल पे आप बात कर रहे हैं, तो आप अमेरिका के ट्रांसजेंडर्स की बात करेंगे, फिर आते आते आप नीचे आते आते यूके में आ गए हैं, आई मीन यूरोपियन कंट्रीज पे आ गए हैं, और फिर आपने इंडिया में देखा है, फिर आप पाकिस्तान के बारे में कहेंगे कि पाकिस्तान में ये है, और फिर ये साबित करेंगे कि हमने अब ये स्टडी करनी है, वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन क्या है, हम क्यों करने लगे ये स्टडी। ये आपका लिटरेचर रिव्यू है, और इस सारे के रेफरेंसेस होंगे। अगेन आप ये 2000 वर्ड्स में कर रहे होंगे, आप साइनॉप्सिस लिख रहे हैं, आप कोई तीर अभी नहीं मार रहे, आपकी साइनॉप्सिस एक सिंपली स्केलेटन है, आपका एक आउटलाइन है किसी बड़े काम का जो आप करना चाहते हैं। वो बड़ा काम अभी नहीं हुआ, साइनॉप्सिस लिखना बड़ा काम नहीं है, लेकिन साइनॉप्सिस लिखनी ही नहीं आएगी तो बड़ा काम कैसे होगा। सो इसमें आपने रेफरेंसेस देने, रेफरेंस कैसे देने उस पर भी हम बात करेंगे। रेफरेंसेस देने के दो तरीके हैं, एक बड़े जो दो तरीके हैं, एक वैंकूवर स्टाइल और दूसरा है अमेरिकन साइकोलॉजिकल काउंसिल का स्टाइल। आमतौर पे साइकोलॉजिकल काउंसिल जो है उसको ये जो सोशल साइंसेस के लोग हैं, एंथ्रोपोलॉजी के, सोशियोलॉजी के और साइकोलॉजी के, ये वो वाला स्टाइल अपनाते हैं, हम डॉक्टर्स ये करते हैं। लेकिन दुनिया में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये हम हैं, डॉक्टर है जी, साइकोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वहाँ ऐसा नहीं है। पब्लिक हेल्थ है तो वहाँ एनवायरमेंटलिस्ट भी आता है, वहाँ पे सब आते हैं, तो वहाँ पे एक टीम जो है ना वर्क है, ठीक है जी। तो ये टीम वर्क जो है वो चल रहा होता है, और वहां पे ये नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन होता है। सो जो हमारे डॉक्टर्स PhD करते हैं, आगे जाते हैं, या PhD फिजियोलॉजी में कर रहे हैं, या आप क्लिनिकल साइंसेज में कोई बड़ी कर रहे हैं, तो फिर ये स्टडीज के अंदर कुछ जर्नल्स की रिक्वायरमेंट है कि आप हमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल काउंसिल के स्टाइल में रेफरेंसेस दें, और कुछ जर्नल्स की रिक्वायरमेंट है कि आप हमें वैंकूवर में दें। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते जब जर्नल की बारी आती है, लेकिन हमारे यहाँ साइनॉप्सिस राइटिंग एट CPSP लेवल एंड मेडिकल कॉलेज 3rd प्रोफेशनल 4th प्रोफेशनल लेवल पे वैंकूवर स्टाइल होता है, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के ऊपर हमारी बात हो गई, लिटरेचर रिव्यू पे भी हमने बात कर ली। अब आगे बात के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लिटरेचर रिव्यू को ये ज़हन में रखें कि आपने पबमेड पे गए, आप गूगल स्कॉलर पे गए, और आपने जाके वहां पे अपने मुतल्लिका जो चीजें वो लिखी, और लिखने के बाद आपने उन्हें ढूंढा। याद रखें जब आप चीजों को ढूंढते हैं, उसको ढूंढने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ साइनॉप्सिस राइटिंग पे बात कर रहे हैं, लेकिन चीजें ढूंढनी कैसे हैं। फर्ज करो आप कहते हैं ट्रांसजेंडर्स में आप डिप्रेशन देख रहे हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल दी, तो आप लिखेंगे डिप्रेशन एंड ट्रांसजेंडर्स एंड USA, या लिखेंगे डिप्रेशन प्लस ट्रांसजेंडर्स प्लस USA। ये तरीका है किसी भी चीज को सर्च करने का, और प्लस का या लिखते हैं या एंड लिखते हैं। कभी आप देखेंगे भी तो जो आपका कंप्यूटर वो आपको बताता है करिए। और आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, आप को अगर आप पबमेड पे हैं, वहाँ फ्री आर्टिकल्स भी हैं, कुछ पेड हैं, कुछ जगहों पे वो आपसे पैसे मांगेंगे कि अगर आपने आर्टिकल पढ़ना है, कुछ में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। अच्छा, इसी के साथ में एक चीज जो एब्स्ट्रैक्ट जिसका जिक्र करना भूल गया, साइनॉप्सिस राइटिंग में एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट जब एंड पे लिखा जाता है, जब आपने कोई रिसर्च कर लिया। तो CPSP रिक्वायर नहीं करता कि एब्स्ट्रैक्ट लिखें। कुछ कॉलेजेस में कहते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट लिखें। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, जब आपने स्टडी कर ली है तो फिर आप लिखते हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी पहले लिखें, रिजल्ट्स ना लिखें अंदर, लेकिन ये कि फिर भी इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स लिख के तो रिजल्ट्स वाला खाना जो कहें कि अभी हम करेंगे, वी विल डू दिस, एब्स्ट्रैक्ट लिख दें। ये रिक्वायरमेंट है कुछ जगहों की, जहां है वहां एब्स्ट्रैक्ट आप लिख लें, जहां नहीं है तो एब्स्ट्रैक्ट कुछ नहीं। एब्स्ट्रैक्ट आपकी साइनॉप्सिस का एक खुलासा और समरी होती है, लेकिन CPSP ये नहीं मांगता, और मैं भी इसके हक में नहीं हूं कि साइनॉप्सिस में एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाए। अच्छा जी, अब आगे बात ऑब्जेक्टिव्स। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी के।
याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव जो है उनकी जो स्टेटमेंट है वो ये ऐसे होनी चाहिए। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। टू डिटरमिन, टू एवेलुएट, टू नो, टू कैलकुलेट, टू मेजर, टू कंपेयर, टू अंडरस्टैंड। फर्ज करें मैं कहता हूं टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिप्रेशन अमंग ट्रांसजेंडर्स, to determine the effectiveness of vitamin D on treatment of tuberculosis, to evaluate the effect of sun bath on vitamin D level, to know the relationship between salt intake and blood pressure, to calculate the, अब आप यहाँ पे कैलकुलेट आ गया तो आप कोई कैलकुलेशन, टू कैलकुलेट द विटामिन डी लेवल अमंग पीपल वर्किंग इन माइनर कोल माइंस, टू कंपेयर, मवाजना करना, टू कंपेयर द IQ लेवल ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ शालीमार मेडिकल कॉलेज एंड सर्विसेज मेडिकल कॉलेज ऑफ लाहौर, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। इस तरह आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं और ये इसी से शुरू होते हैं, टू से। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू के बाद, और एन ऑब्जेक्टिव इज एन इंटेंट ऑफ व्हाट द रिसर्चर वांट्स टू डू स्टेटेड इन क्लियर मेजरेबल टर्म्स। मेजरेबल का क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूं। सो लिखना क्या होता है कि बंदा करना क्या चाहता है। पहले नंबर पे तो अगर आप देखें, आप लिखना चाहते हैं कि जैसे अभी हम बात की है ट्रांसजेंडर्स में डिप्रेशन, तो आप लिखेंगे टू नो द प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन अमंग ट्रांसजेंडर, टू नो द प्रिडिक्टर्स ऑफ डिप्रेशन अमंग ट्रांसजेंडर, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको डिप्रेशन करते हैं, टू नो द और आप कह सकते हैं कि एज डिफरेंस ऑफ फलां फलां। सो जो आपके 5-6 ऑब्जेक्टिव्स उस स्टडी के अंदर होंगे उनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव्स आपका जो टाइटल है उससे बाहर नहीं होने चाहिए। फर्ज करो आप कहते हैं लाइफ स्टाइल ऑफ ट्रांसजेंडर्स, अभी ट्रांसजेंडर्स को मैंने पकड़ा हुआ है इसलिए मेरे जहन में वो आ रहे हैं बार बार, लाइफ स्टाइल ऑफ ट्रांसजेंडर्स या लाइफ स्टाइल ऑफ, हम कह लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, लाइफ स्टाइल ऑफ कोल माइन वर्कर्स। अब कोल माइन वर्कर्स का जब लाइफस्टाइल आ गया तो उनके अंदर हम डाइटरी हैबिट्स को भी ले सकते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को भी ले सकते हैं, वो सोते कब है ये ले सकते हैं, हम लाइफस्टाइल मेडिकल स्टूडेंट का भी ले सकते हैं, कितने सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो लाइफस्टाइल ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स इन मोहिउद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज के नीचे आप जब कहेंगे टू डिटरमिन द स्लीप पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट्स, टू डिटरमिन द डाइटरी हैबिट्स, टू डिटरमिन टू नो द एक्सरसाइज स्लीप पैटर्न, टू नो द एक्सरसाइज हैबिट्स, क्या कि इनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी को एस्टिमेट करना कि कितनी करते हैं, क्या करते हैं, उसके फिर पैरामीटर्स अलग हैं कि कैसे हम मेजर करें। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे जब लाइफस्टाइल आ जाएगा। तो आपका जो टाइटल है, जो टॉपिक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स उसके साथ रिलेट करने चाहिए, एडहेयर क्या करना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए उनका। So broad objectives as visualized to be achieved should be clearly outlined, जो कि आप जानना चाहते हैं वो लिखे हैं, itemized. These objectives will indicate the major aspects of the study to be undertaken. जो स्टडी आप कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि आप वो स्टडी कर रहे हैं। अब जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स कहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको 2-3 आर्टिकल्स लेके आऊं, यहाँ से मैं अभी उठाऊं या मैं किसी वेबसाइट पे चला जाऊं, तो इसके लिए और टाइम चाहिए होगा। तभी मैं आपको कहता हूँ कि देखें, आपको मैं एग्जॉस्ट नहीं करना चाहता, आज आपको ये एक प्रीएम्बल है, अदरवाइज सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पे एक लेक्चर हो सकता है। कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लिटरेचर रिव्यू पे हम घंटा बोल सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि स्टडी करें, पढ़ें आर्टिकल्स। जो बंदा ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा ना, उसको वैसे इतना पता चल जाएगा कि वो कहेगा कि भाई मैं तो सीख रहा हूँ। और इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आपके अंदर एक जज्बा पैदा जरूर हो जाएगा आगे जाने का। ऑब्जेक्टिव्स आर स्मार्ट, स्मार्ट होने चाहिए। अब स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि फिजिकली स्मार्ट होना चाहिए उन्हें। ऑब्जेक्टिव्स आर इनएनिमेट थिंग्स, उनके स्मार्ट होने का मतलब दिस शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक जो चीज आप मैयर करने लगे हैं उसके बारे में हो, मैयरेबल, उनको मैयर किया जा सके। मसलन हम कहते हैं बंदा से पता चलेगा कौन कितना डिप्रेस है, और ये कैसे पता चलेगा कि डिप्रेशन है भी किसी को कि नहीं। दूसरी बात,
मेरा विटामिन डी लेवल बहुत ज्यादा है, मेरा तो कम है। कम और ज्यादा क्या है, ठीक है, इसकी रेंजेस दी हुई हैं, लेकिन आप उसको मैयर करेंगे तो पता चलेगा ना। इसी तरह डिप्रेशन को कोई बंदा कहेगा परेशानी को कैसे मैयर करना है, जी परेशानी को मैयर करने के टूल भी आ गए। मॉडरेट डिप्रेशन क्या होता है, सीवियर डिप्रेशन क्या है, और मॉडरेट डिप्रेशन क्या है, और सीवियर डिप्रेशन और माइल्ड डिप्रेशन क्या, आप उसको डिफाइन मैयरेबल बना देते हैं आपकी। इसी तरह अगर आप इनकम की बात करते हैं, हाई इनकम, लो इनकम, ठीक है, तो हाई इनकम क्या है भाई, अगर एक 20,000 वाला बंदा है तो वो 10,000 वाले से ज्यादा उसकी इनकम है। इसको भी हम मैयर करते हैं और उसकी हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस बनाते हैं कि भाई हाई इनकम इसको कहते हैं। अभी ऑपरेशनल डेफिनेशन भी शायद अभी आएगी। अच्छा ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स मैयरेबल, अचीवेबल हो, जो वो मैं अचीव कर सकें। अगर कोई चीज मैयर ही नहीं की जा सकती, हम कहते हैं जी कि हमने तो जी देखना है कि एक जो सूरज और नेपच्यून का या मार्स का आपस में क्या डिफरेंस है, अगर कहीं किसी को नहीं पता तो आप वहां सूरज पे जाएंगे, आपने को काम करना नहीं। हम तो अपने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को, हमारे यहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो सुन रहे हैं, तो दे आर नॉट अलाउड टू लीव देयर हॉस्पिटल्स। तो हम तो उनको ये भी नहीं कर सकते कि आप शहर जाके प्रेवलेंस आप देखें, या आप नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस देख लें हेपेटाइटिस बी सी का अमंग बार्बर्स या जो ब्यूटिशियंस हैं, खवातीन जो काम करती हैं, उनके अंदर देखें नॉलेज। क्योंकि वजह एक स्टूडेंट्स जा ही नहीं सकते, कैसे निकलेंगे। तो बाकी कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग डेटा ही नहीं जमा कर सकते, अचीवेबल ही नहीं काम, तो वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन करना चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, साफ ज़ाहिर ऑब्जेक्टिव्स रेलेवेंट होने चाहिए अपने टॉपिक और टाइम बाउंड होने चाहिए। तो आप कितनी देर में के 4th ईयर के स्टूडेंट्स के पास 2-3 महीने होते हैं डेटा जमा करने के, वो कोहोर्ट स्टडी तो नहीं कर सकते, इसके लिए 10 साल चाहिए। सो आपको अपनी स्टडी को सिलेक्ट करने में, अपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने में, अपना टॉपिक सिलेक्ट करने में यू हैव टू बी वेरी क्लेवर, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ऑब्जेक्टिव्स को कैसे नरेट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया, टू डिटरमिन, टू एवेलुएट, टू नो, टू कैलकुलेट, टू मेजर, टू कंपेयर, टू अंडरस्टैंड। आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। अगेन आप पढ़ें, अगर आपको आज के लेक्चर से कोई ऐसी कोई वो पैदा हो जो कि ट्रिगर हो आपके लिए टू नो मोर, टू गो अहेड विद दिस, तो हम इसको जारी रखेंगे। अदरवाइज साइनॉप्सिस पे भी आप देख लें कितना टाइम लग रहा है जस्ट टू टॉक अबाउट साइनॉप्सिस। अभी हम प्रपोजल पे बात नहीं कर रहे, लेकिन प्रपोजल के अंदर ये बहुत सारी चीजें शामिल हैं। ये ज़हन में रखें कि साइनॉप्सिस पूरी की पूरी प्रपोजल में है, इसलिए आप इसको ये ना समझिए कि प्रपोजल का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, अब आगे बात, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एम, गोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग फंसे होते हैं, गोल क्या है जी, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, गोल जो है ना वो भी मैं आपको बताऊं, एम क्या हो सकता है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो पढ़े होंगे जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर पॉवर्टी आ जाती है, एजुकेशन है, हेल्थ है। आप देखें जी, पॉवर्टी है तो एजुकेशन है, हेल्थ है तो हेल्थ के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और ये भी रखें कि ये वो रिलेटिव टर्म्स है। गोल एम भी हो सकता है और एम गोल भी हो सकता है। अलबत्ता ऑब्जेक्टिव जो है वो गोल और एम नहीं हो सकते। एम और गोल आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एम क्या होता है और गोल क्या होता है। लेकिन एक टाइम में एक एम जिसको हमने तय कर लिया वो एम ही रहेगा, गोल गोल रहेगा। मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ इंप्रूव करना या बच्चों की एजुकेशन पे काम करना। आप देखिए, बच्चों की एजुकेशन इंप्रूव करना एक एम है आपका, बहुत बड़ा एक काम है, एम है। टू स्ट्रेंथन योर कंट्री इज एम, टू मेक योर इनकम हाई इज एम, to have a very good career financial aim, to have a very good medical career is your aim. अब गोल क्या है, गोल ये है कि आप कह रहे हैं मैंने डॉक्टर बनना है। अब ये देखें, डॉक्टर बनेंगे तो गोल है मैं डॉक्टर बनूंगा और फिर मेरा जो है ना मेरी अगली लाइफ बड़ी बेहतर होगी, और मेरा एम ये है कि मैं एक बेहतर फाइनेंशियल कैरियर करूं। उसके अंदर डॉक्टरी एक गोल है जो मैं अचीव करूंगा और मेरा एम अचीव होगा। अब गोल हो गया डॉक्टरी, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं 1st ईयर पास करूं, 2nd ईयर पास करूं, 3rd ईयर 4th ईयर पास करूं, मैं पढ़ाई अच्छी करूं, मैं अपनी वो जो है ना सेहत का ख्याल रखूं ताकि मैं पढ़ सकूं, मेरे अपने टीचर्स के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो, मैं घर में अपनी नींद पूरी करूं। ये सारे के सारे मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मुझे गोल की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये सारे मेजरेबल होने चाहिए। गोया कि ऑब्जेक्टिव्स लीड टू योर गोल एंड गोल लीड्स टू योर एम। एम से आप एम्बिशियस निकाल लें, आप समझे कि एम
जो है ना उससे लस से एम्बिशियस, हालांकि वो तो और चीज है। लेकिन एम क्या है? अगेन टू मेक योर कंट्री स्ट्रॉन्गर, टू मेक द हेल्थ ऑफ द पीपल बेटर वन इन पाकिस्तान। एंड फॉर दैट आप क्या कर रहे हैं? आप उसके लिए कर रहे हैं, हमारे पास फिर 10 मिनट्स रह गए हैं सिर्फ। आप उसके लिए कर रहे हैं कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखिए जाके कि आप अपनी पॉवर्टी को करना चाहते हैं, तो वो आपका गोल है, और उस पॉवर्टी को कम करेंगे तो आपका मुल्क फ्लरिश करेगा। तो वो गोल अचीव करने के लिए पॉवर्टी, आप लोगों का बिजनेस बेहतर करना चाहते हैं, लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, और उसके नीचे फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। गोया के ऑब्जेक्टिव्स आपको किसी गोल तक लेके जाते हैं, और गोल आपको किसी बड़े एम की तरफ लेके जाता है जो ब्रॉडर टर्म है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया जस्ट टू अंडरस्टैंड। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है? ऑपरेशनल डेफिनेशन ये है कि मैं कहता हूं मुझे टाइफाइड है, एक और बंदा कहता है मुझे भी टाइफाइड। अब टाइफाइड को, आपको पता है एंटेरिक फीवर को पिछले दिन उन्होंने टाइफाइड डॉट को भी कहा कि ये भी फजूल है, और उन्होंने कहा कि विडॉल भी फजूल है, और उन्होंने कहा जी कल्चर के ऊपर सिर्फ होगा। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन कल्चर की होगी। अगर एक बंदे ने ऑपरेशनल डेफिनेशन टाइफाइड डॉट की बनाई हुई, तो फिर टाइफाइड डॉट जिनका पॉजिटिव होगा वो सारी टाइफाइड डिक्लेयर होंगे जैसे पहले होते थे। लेकिन इफ योर ऑपरेशनल डेफिनेशन इज कि वी विल सी द कल्चर, फिर कल्चर के ऊपर होगा। कल्चर में भी आगे बड़ी वैरायटी हो सकती है कि कितने पर वो क्यूबिक है, पतने कितने हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। अभी हम थोड़ा नैरो रखते हैं अपने आप। इसी तरह आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेफिनेशन क्या है? वूंड नहीं, लेकिन किसको कहते हैं? ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज जो है वो उसको कैसे डिफाइन करें? ये सारी ऑपरेशन। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन को हम कहेंगे जिसका स्कोर बेक स्केल पे 23 से ज्यादा है वो हाई है, जिसका 10 से दरमियान है वो मॉडरेट है, जिसका ये है ये। इसका मतलब है कि हमें ऑपरेशनल डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। अगर हम कहते हैं, कोई भी चीज कहते हैं कि ट्रीटमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिकेसी, तो हम किसी भी चीज की एफिकेसी को डिफाइन करने के लिए हम उसका एक ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाएंगे। कि मलेरिया किस तरह मिले, हाइपरटेंशन क्या? एक बंदा एक दफा ब्लड प्रेशर नोट करता है और उसका ब्लड प्रेशर वैसे किसी एक्सरसाइज की वजह से, दौड़ने की वजह से, वक्ती टेंशन की वजह से हाई है, आप उसे हाइपरटेंशन डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि नहीं जी 10 दिन उसका बीपी देखा जाए। तीसरा कहता नहीं एक टाइम पे 3 दफा देखा जाए। तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन 3 हो गई। तो यू हैव टू मेक अ वेल सेट डेफिनेशन फॉर योर रिसर्च। ठीक है, तो मेजरमेंट और डिटर्मिनेशन। फिर इंस्ट्रूमेंट्स में फर्क होता है। एक बंदे ने जो बीपी ऑपरेटर्स यूज कर रहा है, दूसरे का सही नहीं, कैलिब्रेशन नहीं हुई। एक लेबोरेटरी ठीक नहीं, दूसरी लेबोरेटरी ठीक है। आप टेस्ट इधर से करवा रहे हैं, रिजल्ट और आ रहा है, उधर से और आ रहा है, कुछ क्या आपने कहीं कहीं करवा रही है। सो दिस इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। कि आपने बहुत ख्याल रखना है कि आप अपनी रिसर्च में जिस चीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन आपने रखी हो। खा वो एंटारिक फीवर है, खा वो डिप्रेशन है, खा वो इलाज है, खा वो विटामिन डी लेवल है, खा वो लेबोरेटरी है, मतलब वट एवर इट इज, जो आपका वेरिएबल है। याद रखें, आप वेरिएबल पे स्टडी कर रहे होते हैं। आपके वेरिएबल्स हैं, ब्लड प्रेशर आपका वेरिएबल, साल्ट इनटेक वेरिएबल, डिप्रेशन वेरिएबल, एंजाइटी वेरिएबल, आपकी एज वेरिएबल, आपकी हाइट वेरिएबल, आपका वेट वेरिएबल, आपका कलर वेरिएबल, आपकी आई साइट वेरिएबल, ये सब वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल इज एन एंटिटी विच चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर डिफरेंट पर्संस वो चेंज करती है। वो मेज भी हो सकता है वेरिएबल, मेज की लेंथ। और याद रखें, जो रिसर्च में पॉपुलेशन सिर्फ बंदों को नहीं कहते। इफ वी आर वर्किंग ऑन टेबल्स तो वो भी है। अगर आई एम वर्किंग ऑन एयर कंडीशनर जो लगे हुए हैं पूरे कॉलेज के अंदर, तो दे आर माई पॉपुलेशन। अच्छा जी, आगे ऑपरेशन डेफिनेशन के बाद हाइपोथेसिस आ जाती है। हाइपोथेसिस नॉट ऑलवेज देयर इन साइनॉप्सिस, लेकिन मैंने कोई टॉपिक आपके लिए रहने दिया ताकि आपको समझ आ जाए। हाइपोथेसिस जो है इज नीडेड इन द फॉलोइंग स्टडी। ये जो स्टडी डिजाइन है ना, ये जो है इंटरवेंशनल स्टडीज, कोहोर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी, इनके अंदर। अच्छा ये बताइए कि अभी हमें 6:21 हो गए हैं, अभी हमें हमारी 5 मिनट रह गए। हमें एक दफा दोबारा आना होगा इसको मुकम्मल करने के लिए। आप रेडी हैं? यस सर, रेडी है। Yes, sir. हाँ, एक जी दफा और सर। आना होगा, उसमें हम इसे मुकम्मल कर देंगे इंशाल्लाह। कोहोर्ट स्टडीज में जाते हैं, इंटरवेंशन स्टडीज में जाते हैं। अच्छा, ये जो स्टडी डिजाइन है, याद रखें ये बहुत बड़ा एक इशू है कि स्टडी डिजाइन कौन सा। आप तो साइनॉप्सिस की बात कर रहे हैं, तो आगे आपने रिसर्च करनी है, तो स्टडी डिजाइन कौन सा? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडी डिजाइन आपका होगा, केस कंट्रोल होगा, प्रेवलेंस स्टडीज, क्रॉस सेक्शन स्टडी होगी, कोहोर्ट होगी। ये सारी बातें भी तय करनी पड़ती हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने जो स्टडी करनी, याद रखें साइनॉप्सिस से आप कोई
स्टडी नहीं करने बैठ जाएंगे। यू नीड अ स्टैटिस्टिशियन, टू नीड अ पर्सन टू गाइड यू, यू नीड अ पर्सन जो कि आपको बताए, जो लोग रिसर्च में, एक आपको सुपरवाइजर, एक बंदा सीनियर चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें कम से कम आपको सेटिस्फाई कर देंगे कि ये चीजों की आपकी नो हाउ है, एक आउटलाइन आपको मिल गया। अदरवाइज यू नीड समबडी। तो बहरहाल मैंने आपके लेवल पे ये जरूर कह दिया कि if somebody is interested to do something good, something impressive, तो I can help। उसके लिए मैं टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि मेरे पास टाइम कितना है, मैं कर सकता हूँ। ये मैं अपनी सर्विसेज आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो लोगों ने, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, अगर आपने वैसे ही टाइम जाया करना है तो डोंट डू इट। अक्सर लोग आते हैं जी करनी है, रिसर्च करते नहीं है और फिर वो कहीं और गायब हो जाते हैं। आमतौर पर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को बाद में वो किसी और चक्रों में OIT में चले जाते हैं, हमने वो करना है, प्लैब करना है, रिसर्च, फिर उन्हें जरूरतन कोई कुछ लोगों को 1-2 आर्टिकल चाहिए होता है अपनी वो CV को इनहांस करने के लिए, तो वो तो पैसे देके भी छपवा लेते हैं। बाहर ये जो है केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडी और इंटरवेंशन स्टडीज, इसके अंदर हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस बिलीफ होता है रिसर्चर का। मतलब मैं ये कहता हूं कि ये जो ट्यूबलाइट मैंने सामने ऑन की हुई है या जो मेरी स्क्रीन है, ये मेरी जो है ब्रेन को मुतासिर कर रही है। देयर इफेक्टिवनेस ऑफ LED स्क्रीन यूज ऑन मेंटल हेल्थ। हाइपोथेसिस मैं बनाता हूं कि LED स्क्रीन डैमेजेस योर मेंटल हेल्थ, तो ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। और इसकी नल हाइपोथेसिस होगी कि यूज ऑफ LED स्क्रीन इज नॉट डैमेजिंग फॉर माय मेंटल हेल्थ। और तीसरी 2 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसकी हो सकती हैं, द यूज ऑफ LED स्क्रीन improves the mental health of the person, और जो नेगेटिव होती है द यूज ऑफ LED स्क्रीन डैमेजेस। तो ये 2 अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी हो सकती हैं। मसला हम कहते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ये भी कि नमक का साल्ट इनटेक का ब्लड प्रेशर पे कोई असर है, कोई असर। इसके बाद एक हाइपोथेसिस नल बनती है, साल्ट इनटेक का ब्लड प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 2 होती हैं, टू टेल्ड हाइपोथेसिस, जिन्हें कहते हैं कि साल्ट इनटेक से ब्लड प्रेशर बेहतर कम करती है, साल्ट इनटेक ब्लड प्रेशर ज्यादा करती है। तो ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हम 2 मिनट हमारे रह गए। अभी तो हाइपोथेसिस जरूरत पड़ती है कहीं पे इन स्टडीज में, अदरवाइज हाइपोथेसिस नहीं लिखी जाती। CPSP वाले इन स्टडीज में आपसे हाइपोथेसिस मांगते हैं। अच्छा जी, हाइपोथेसिस के बाद हमने एक चीज शायद इसमें नहीं लिखी, रैशनल कहीं आया या आगे है, देखते हैं। हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा, अब आ गई बात, इससे भी पहले ये रैशनल को समझें कि मेथोडोलॉजी से पहले, ये वैसे यहाँ स्लाइड लग गई है। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं कि रैशनल को मैं ऊपर ले जाऊं, बल्कि आप समझें कि ऊपर ही है ये। हाँ जी, हम रैशनल को पहले पढ़ने लगे हैं। अच्छा, ऑपरेशनल डेफिनेशन के बाद, हाइपोथेसिस के बाद, सॉरी हाइपोथेसिस के बाद समझे कि रैशनल है। तो रैशनल जो है वो क्या होता है, अभी मैं वो स्लाइड ऑन नहीं कर रहा, समझेगा अभी हम रैशनल पढ़ रहे हैं। ये मैं लिख देता हूँ अगर आप कहते हैं तो, RATIONALE। ठीक हो गया, हमारे पास टाइम 1 मिनट रह गया। रैशनल पे बात कर, रैशनल आप लिखते हैं कि आप ये स्टडी क्यों करना चाहते हैं भाई, क्या मसला है आपको, आप क्यों इस पे पैसे लगाना चाहते हैं, टाइम जाया करना चाहते हैं। फर्ज करें आप कहते हैं कि आप ट्रांसजेंडर्स के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं कि वो एड्स की कितनी प्रेवलेंस है उनके अंदर, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स बहुत हैं, अनप्रोटेक्टेड जो है ना ये लोग हैं, और ये सेक्स बाय अपॉर्चुनिटी करते हैं, और ये लोगों की जो लाइफ है वो इस तरह की है, और ये एड्स में पाकिस्तान में स्प्रेड का बायस बन सकते हैं, और पाकिस्तानी जो कल्चर है उसके अंदर इनके लिए एक्सेप्टेंस भी नहीं है, और हम इनके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बम है सोसाइटी के लिए जहाँ पे एड्स फैला सकते हैं। या आप कहते हैं ये जो चर्सी हैं सब्सटेंस यूज वाले, उन पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में इतने % यूथ जो है वो ड्रग एडिक्ट है, और इतने % लोग जो है इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स हैं, और ये एक ही सैलरी के साथ सारे ये काम करते हैं, और पाकिस्तान में कोई मैयर्स नहीं है, हाइजीन कुछ नहीं है, एड्स फैल रही है। इसलिए हम ड्रग एडिक्ट्स पे, सब्सटेंस अब्यूजर्स पे, सब्सटेंस यूज करने वालों पे, ये सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर पे हम रिसर्च कर रहे हैं। ये हमारा रैशनल है, क्योंकि पाकिस्तान मुतासर होने वाला है, हमारी सोसाइटी को का प्रॉब्लम है।
जी मैं स्टार्ट करूं जी? Sure, sir. Yes, sir. अच्छा, we were talking about rationale. Rationale का मतलब है justification of your study. You will have to provide the data. You will have to take your reader into confidence that the problem is very crucial. The problem is very, very damaging for your society, for your geography, for your vicinity where you are living in. And there is a strong need to have a research on this topic. And eventually we have decided to conduct this research, and this is the reference, and this is the statistical justification of this. We have this much number of transgenders. Transgenders do this. There's a very potential threat of spreading AIDS by transgenders. So we are working on this, and we have designed this study. So this is the rationale. And then we come to methodology and material and methods. Methodology or materials and methods. Methodology or material and methods, ये एक ही चीज है. So ये हो गया जी आपका. ठहरे जरा, कहाँ पहुंचे हम? यस. अब आगे जो टॉपिक्स हैं वो सारे मेथोडोलॉजी के नीचे हैं. मसलन मेथोडोलॉजी और मटेरियल्स एंड मेथड्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, the study you have selected, the topic you have selected, the study design you have selected would define कि आपने statistical procedure क्या करना है, how would you go on with your study and conclude and have results, and कैसे जाएंगे आप आगे. और यही वजह है कि when you complete your synopsis, तो आप एंड पे अपने टॉपिक को you have all the rights to change your topic, to rephrase your topic. क्योंकि टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हुए आपको एंड पे समझ आती है कि हमने जो शुरू में सोचा था चीजें कुछ डिफरेंट है. सो जो क्लेवर लोग हैं वो एट द एंड अपने टॉपिक को दोबारा चेंज कर रहे हैं. अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रपोजल. प्रपोजल में आपको टॉपिक दिया हुआ है. यू हैव बीन आस्क्ड टू वर्क ऑन इट. यू हैव बीन गिवन बेनिफिट कि आपको यू वुड बी फंडेड फॉर दैट, और आपको कहा गया कि आप हमें बना के दें प्रपोजल, एंड वी वुड थिंक उसमें कंपेटिटर्स भी आपके होते हैं कि हम आपको ये फंड करेंगे कि नहीं. हाउ कम कि यू फिट फॉर दिस रिसर्च. ठीक है जी. तो मेथोडोलॉजी होगी. मेथोडोलॉजी के अंदर वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट स्टडी डिजाइन, द वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो स्टडी डिजाइन कहाँ गया? हाँ, मेथोडोलॉजी में आपने स्टडी डिजाइन बताना है. स्टडी डिजाइन ही बहुत अहम है. बेसिकली स्टूडेंट्स या जो रिसर्चर यही कंफ्यूज होता है कि मैंने करना क्या है. अगर आप 20 साल तक किसी चीज का इफेक्ट देख रहे हैं, आप कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि ये जो इंसुलेशन जहां पे नहीं होती और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पे जो वर्क करने वाले रेडियोलॉजी के टेक्नीशियंस हैं उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है. मेरा ख्याल है कि जिससे कि प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है जो रेडिएशन से, या कुछ और कैंसर्स भी होते हैं. तो हम उसको अगले 10 साल तक स्टडी कर रहे हैं. रिस्क फैक्टर क्या है? टू वर्क इन नॉन इंसुलेटेड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट. हैजर्ड क्या है? कोई डिजीज हो जाती है, प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. हम इस रिस्क फैक्टर का ये प्लास्टिक एनीमिया के होने पे या के साथ इसका रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, और अगले 10 साल स्टडी करनी है हमें. दिस वुड बी कोहोर्ट स्टडी, जो कि मुश्किल है. 10 साल तक कौन करेगा? इसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें पैसे चाहिए, एथिकल कंसिडरेशन है कि आप उन लोगों को उन पर रिसर्च करनी शुरू कर दिए बजाय इसके कि आप इंसुलेशन करें. सो स्टडी डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रेवलेंस देखना चाहते हैं, मतलब आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट्स को पता है कि ओईटी एग्जाम बहुत जरूरी है प्लैब देने के लिए या आयरलैंड जाने के लिए. अगर आपको आवाज ना आए तो मुझे बताइएगा, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन वीक हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है आपको आवाज जा रही है. ठीक है. सो हमारे कितने स्टूडेंट्स को पता है कि ओईटी एग्जाम is essential for your आप प्रेवलेंस देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी. अगर आप देख रहे हैं कि कुछ हो गया है, डिजीज हुई हुई है लिशमेनियासिस, और कम से कम 30-40 लोग लिशमेनियासिस के मिले हैं, और आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुई, किन हालात में हुई, कब हुई, तो आप पीछे जाके देखना चाहते हैं, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है. तो ये आपकी केस कंट्रोल स्टडी है. मैं सिर्फ रिसर्च स्टडी डिजाइन पे 3-4 दिन की वर्कशॉप करता हूं. आप खुद सोचें, हम सिनॉप्सिस में तो सिर्फ टच कर सकते हैं ना.
आई टॉक अबाउट स्टडी डिजाइन, तो फिर मुझे कोहोर्ट स्टडी पढ़ानी पड़ती है, केस कंट्रोल पढ़ानी पड़ती है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पढ़ाना पड़ता है, प्रेवलेंस स्टडीज पढ़ानी पड़ती है, रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ाना पड़ता है, कोरिलेशन पढ़ाना पड़ता है, जितना मुझे आता है। मुझे कोई दावा नहीं है कि मुझे बहुत आता है, लेकिन जो आता है तो हम फिर उस पर काम करते हैं। तो अब खुद सोचें कि स्टडी डिजाइन पे कितनी लंबी बात हो सकती है। आमतौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं लफ्ज़ वैसे पंजाबी का यूज कर लेता हूँ हम थके हुए जो रिसर्च करते हैं, वो प्रेवलेंस स्टडी, ठीक है, प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन, प्रेवलेंस ऑफ एंजाइटी, प्रेवलेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, ये सारी स्टडीज जो है लोएस्ट कैटेगरी की स्टडीज हैं, हायरा। तो हम स्टडी डिजाइन को पहले तो करेंगे और हम कहेंगे कि ये हमारा स्टडी डिजाइन है। अब हमें जल्दी भी करना है ताकि हमारे टाइम, अब इसी टाइम में हमने इसको खत्म करना है इंशाल्लाह। स्टडी डिजाइन आप बताएंगे, और ये सारा कुछ किसके नीचे आ रहा है? ये सब कुछ आ रहा है मेथडोलॉजी या मटेरियल और एंड मेथड्स के नीचे। स्टडी डिजाइन में आप मेंशन करेंगे, अगर आपने हमारे जहां से 40 मिनट शुरू हुए हैं, आपने मुझे टाइम बताते जाना जब जब मैं आपको पूछूं। स्टडी डिजाइन जो है ये हो गया। अब स्टडी डिजाइन के अंदर सेटिंग आ जाएगी। स्टडी डिजाइन के अंदर सेटिंग नहीं आएगी, मेथडोलॉजी के अंदर स्टडी डिजाइन है और मेथडोलॉजी के अंदर ही सेटिंग है। सेटिंग ये कहाँ कर रहे हैं आप भाई फेरू में कर रहे हैं, आप जो है लाहौर में कर रहे हैं, आप जनाब कसूर में कर रहे हैं, या आप लाहौर के किसी मोहल्ले का नाम ले लेता हूँ, समनाबाद, ठीक है, वहां पे आप कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हम ये रिसर्च समनाबाद में करने लगे हैं और ये वहां पे होगी, ये हमारी सेटिंग है। या मेडिकल कॉलेज के अंदर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में कर रहे हैं, या मेडिकल कॉलेज की ओपीडी जो हॉस्पिटल है आपका, टीचिंग हॉस्पिटल, उसकी ओपीडी में जो लोग आ रहे हैं उन पे आप कर रहे हैं, ठीक होगी बात। ये एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दी। मतलब मैंने रिसर्च की पाकिस्तान अपनी पीएचडी की इस्लामाबाद में, जो सब्सटेंस अब्यूज करते थे, उसके अंदर भी मैंने कहा कि मैं इस्लामाबाद के फला एरियाज में कर रहा हूँ। मैंने एल्डरली लोगों पे डिप्रेशन पे काम किया रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये मेरी सेटिंग थी। सेटिंग का मतलब है जगह, कहाँ कर रहे हैं। आगे ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, ये भी मेथडोलॉजी के नीचे। आप स्टडी कितने दिन करेंगे? 4th ईयर के स्टूडेंट्स बेचारे 3 महीने करते हैं, कोहोर्ट स्टडी 10 साल चलती है। तो स्टडी कितने दिन करेंगे? डेट्स लिखेंगे आप। हम अक्टूबर 10 से अक्टूबर 10 अक्टूबर 2024 से 10 अक्टूबर 2025 तक करेंगे, तो 1 साल की होगी। और अगर आपने 3 महीनों में करनी है तो कौन सा बड़ा तीर हम मारेंगे? साफ ज़ाहिर स्टडी भी वैसी ही होगी। या पीएचडी में 5-5 साल स्टडी चलती है। अच्छा, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई क्या करना है। जो लोग बड़ा काम करना चाहते हैं उनको नहीं इससे गर्ज कि मैं 4th ईयर में फाइनली, दे स्टार्ट देयर वर्क, ठीक है, वो बड़े लेवल का काम करते हैं और वो कर गुजरते हैं। अच्छा जी, मैं इसी कह रहा हूँ कि आप लोग रिसर्च कमेटी आपने बनाई हुई है इतने मेडिकल कॉलेजेस में, तो आई सपोज कि आप सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होकर बात कर रहा हूँ। नहीं तो क्लास में बड़ा मसला हो जाता है, लोग ऐसे ही सुन रहे होते हैं कुछ में। सैंपल साइज, अभी भी लोग आ रहे हैं। अच्छा जी, सैंपल साइज ये है कि हाउ मेनी पेशेंट्स विल बी इंक्लूडेड, आपका सैंपल साइज कितना है। अब आप ये भी कहेंगे हमें कैसे पता है जी सैंपल साइज का? सैंपल साइज को कैलकुलेट किया जाता है। जो आप स्टडी करेंगे, जो स्टडी डिजाइन होगा, उसकी रिक्वायरमेंट सैंपल साइज कैसे डिजाइन करना। सैंपल साइज डिजाइन फार्मूला बोले ये कि वो तो और कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन सैंपल साइज को रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के लिए कैसे मेजर करना है स्टडी, ये सब के लिए हम देखते हैं स्टडीज पे एरर देखते हैं, कितने परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल है, 95%, 98%, वो पी वैल्यू हमने क्या रखनी। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, इनके ऊपर एक लेक्चर की जरूरत। लेकिन सैंपल साइज 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं, 200 हैं। आमतौर पे हम क्या करते हैं? कन्वीनियंट कंसेप्टिव कन्वीनियंट सैंपल प्रेवलेंस स्टडी हम करते हैं 4th ईयर में। हमारे हॉस्टल में क्या है, आपने कैसे कलेक्ट करना है? क्या सिंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे, सिस्टमिक रैंडम सैंपलिंग करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे? कैसे सैंपल लेंगे? एक बंदा छोड़ के लेंगे, लॉटरी मेथड के जरिए लेंगे, जो आ जाएगा वो ले लेंगे, जो आ जाएगा वो ले लेंगे। उससे कहते हैं कंसेप्टिव कन्वीनियंट सैंपलिंग। सिंपल रैंडम का मतलब ये है कि आपको कहा गया है कि क्लास के 500 स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी है, आपने सैंपल लिया है, या 100 में से आपने 100 बंदे हैं तो उन पे रिसर्च करनी, 10 का आपने सैंपल लिया है, तो अब आपने 10 कैसे लेने हैं? आप लॉटरी मेथड के जरिए 10 चुन लेंगे, या आप फ्रेम लेंगे, पूरे रजिस्टर लेंगे और हर 10वें बंदे को ले लेंगे, तो 100 में से 10 हो जाएंगे। इसको कहते हैं सैंपलिंग टेक्निक। और सैंपलिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? सिंपल रैंडम,
सिस्टेमिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग उनमें होती है जो ये लोग मार्जिनलाइज होते हैं, मतलब चर्स पीने वाले लोग, नशा करने वाले लोग। एक बंदा मिला, आपने उसे कहा दूसरे कहाँ कहाँ है, वो दूसरे भी मिलवा रहा है आपको, आखिर में आपके पास एक दूसरे की वाकफियत से 20-30 बंदे हो गए। इसको स्नोबॉल इसलिए कहते हैं कि स्नोबॉल नीचे पहाड़ से गिरता है, साथ उसके स्नो और जमा होती जाती है और नीचे आके वो बड़ा बॉल बन जाता है। मेरी टेक्निक भी स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक होगी बात। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इन लोगों में होती है। जैसे कि हम डाइवोर्सीज में कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो कोई लोग नहीं आएंगे, एक डाइवोर्सी कहेगी कि मेरी एक सहेली है वो भी डाइवोर्सी है, या मेरा एक दोस्त है वो डाइवोर्सी है। तो आमतौर पे इस तरह एथिकल कंसिडरेशंस भी होती हैं जिसके अंदर लोग आप नहीं करते। सैम्पलिंग टेक्निक भी मैंने आपको बता दी है। डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, अब आपने डेटा जमा कर लिया हुआ है, डेटा जमा करके अब आपने स्टैटिस्टिशियन की मदद से या खुद आपने SPSS पे या एक्सेल पे डेटा को करना है। रेलेवेंट डिटेल्स कौन से सॉफ्टवेयर पे आप कर रहे हैं वो बता रहे हैं, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाने लगे हैं। कौन सा टेस्ट आप लगाने लगे हैं? काई स्क्वायर लगाने लगे हैं, क्यों लगाने लगे हैं? अनोवा लगाने लगे हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस उसे कहते हैं, क्यों ये टेस्ट लगाने लगे? इस साइनॉप्सिस में आप देखें हमने कोई टॉपिक तो चुना नहीं, इसे हम नहीं कह सकते कि हम इस वक्त कौन सा टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। हम तो अभी बात कर रहे हैं साइनॉप्सिस की। अगर हम एक बात कर रहे होते कि एक स्टडी के ऊपर बात कर रहे होते तो फिर हम उसमें देखते कि उसके अंदर क्या क्या टेस्ट लगेंगे। अनोवा लग रहे हैं, टी टेस्ट लग रहा है, जी टेस्ट लग रहा है, कंपेयर टी टेस्ट है, अनपेयर टी टेस्ट है, या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, काई स्क्वायर है, जी टेस्ट है। ये हम डिसाइड करेंगे अपने स्टडी डिजाइन को देखते हुए। ठीक हो गया जी, डेटा एनालिसिस हो गया। और डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, डेटा कलेक्शन कैसे करनी है? वैसे डेटा एनालिसिस बाद में होगा, डेटा कलेक्शन पहले होगी। ये स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई। डेटा कलेक्ट कैसे करना है? डेटा हम कलेक्ट करेंगे, हमारे पास क्वेश्चनेयर होंगे, ठीक है। रिसर्चर कैसे डेटा कलेक्ट करेगा? ये लिखेगा साइनॉप्सिस में कि हम ये वेरिएबल्स टच करेंगे। हम डेमोग्राफी देखेंगे, लोगों की इनकम देखेंगे, जेंडर देखेंगे, एज देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो कहाँ रहते हैं। फिर वेरिएबल्स में हम उन्हें नोट करना चाहते हैं कि एड्स है, कितनों को है, किसको है एड्स की हमारे पास वो होगी HIV पॉजिटिव की एक, अगर हम ट्रांसजेंडर्स पे काम कर रहे हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी, और उसके जरिए हम करेंगे और डेटा कलेक्ट कर लेंगे हम। और डेटा कलेक्ट करने के बाद एक परफॉर्मा या क्वेश्चनर होगा। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जैसे कि आप स्टूडेंट्स में देख रहे हैं स्लीपिंग पैटर्न, कितना सोते हो, कितनी देर आप स्क्रीन यूज करते हैं, कितनी देर आपकी मोबाइल यूज है, खाना किस टाइम पे खाते हैं, एक्सरसाइज कब करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चनर आप देते हैं जिसको परफॉर्मा कहते हैं, और इसको कहते हैं डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। और ये जो परफॉर्मा है इसको कहते हैं डेटा कलेक्शन टूल। सैंपल सिलेक्शन, हाँ जी। अब आपने जिन लोगों को किया है उनमें आपने क्राइटेरिया क्या रखा है, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है आपके सैंपल का। आपने किन लोगों को लिया और किन को नहीं लिया। फर्ज करो कि मैं डिप्रेशन के मरीज देना चाहता हूं, तो मैं डिप्रेशन के मरीज ले रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि मैंने वो सारे लोग लिए जिनको डिप्रेशन था। अब एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में ये नहीं लिख सकता कि मैंने उन सारे लोगों को छोड़ दिया जिनको डिप्रेशन नहीं था। याद रखें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। मेरी तरह थोड़ा शोर भी आना शुरू हो जाएगा आपको। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, यानी कि जिस चीज का इंक्लूजन क्राइटेरिया में डिस्कस हो गया है वो एक्सक्लूजन में नहीं होगा। मैं ये कहूंगा कि मैंने सारे डिप्रेशन के मरीज लिए ट्रांसजेंडर इंक्लूजन क्राइटेरिया में, और मैं ये कहूंगा कि मैंने जो साइकोटिक पेशेंट थे या जिनको कोई सिंड्रोम थी या सिस्टेमिक डिजीज थी उनको छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने डिप्रेशन वाले ले लिए और जिनको डिप्रेशन नहीं था मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि मैं एक ही बात दोनों चीजों में कह रहा हूं। जब मैंने इंक्लूजन क्राइटेरिया में कह रहा हूं कि मैंने डिप्रेशन वाले लिए, तो एक्सक्लूजन में ये कह के कि मैंने डिप्रेशन जिनको नहीं था नहीं लिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। सो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, उनका एक दूसरे के अंदर शामिल नहीं होते। डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, ये मेरा ख्याल स्लाइड 2 दफा यूज हुई है। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया और कैसे यूज किया, और उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स थे हमारे। फिर हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे कि हमारे रिजल्ट्स क्या आए। अच्छा, ये रिजल्ट्स भी आपके साइनॉप्सिस में शामिल नहीं है। साइनॉप्सिस में रिजल्ट्स कहां से आएंगे, ये मैं अब आपको इजाफी चीजें बता रहा हूं कि अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो फिर आप उसमें रिजल्ट्स लिखेंगे, लेकिन साइनॉप्सिस में रिजल्ट्स नहीं है। ये स्लाइड इजाफी है क्योंकि आपके रिजल्ट्स अभी नहीं आए, आपने कोई एनालिसिस किया ही नहीं, अभी तो आप साइनॉप्सिस लिख रहे हैं, अभी तो आपने डेटा भी जमा नहीं किया। आप तो बता रहे हैं हमने डेटा ऐसे जमा करना है, तो रिजल्ट्स आप नहीं लिखेंगे, डिस्कशन भी नहीं लिखेंगे।
डिस्कशन कब लिखी जाती है? जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो साइनॉप्सिस में डिस्कशन नहीं होगी। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं आपकी रहनुमाई के लिए कि ये चीजें मिसिंग होती हैं जो कि फिर आर्टिकल में आ जाती हैं। तो डिस्कशन हम करेंगे कि हमारे रिजल्ट्स ये आए, दुनिया में जहां स्टडी हुई उनके रिजल्ट्स ये आए, हमारे रिजल्ट्स और दुनिया के रिजल्ट्स का स्टडी में क्या डिफरेंस है, और इसके अंदर हम अपनी राय भी दे सकते हैं। डिस्कशन इज द ओनली पोर्शन ऑफ योर आर्टिकल, नॉट साइनॉप्सिस, where you can share your own ideas, not in literature review, not in introduction, just in discussion you can share your ideas without reference, और बाकी चीजें आप रेफरेंस से बताएंगे कि हमारी स्टडी में ये हुआ और बाहर ये हुआ। कितना टाइम रह गया जी मुझे बताइए? चालीस मिनट में कितना टाइम रह गया है? कोई नहीं बोल रहा सर 1 मिनट में बताता हूँ है। सर। 6:43 सर, 1 मिनट सबर है। कितने मिनट्स? सर 1 सेकंड में बताता हूँ। Sir, we have like 20 minutes. 20 मिनट है कितने? अभी। 20 Sir, we बीस have मिनट like 20 20 minutes. मिनट्स हैं अभी, 6:28 ओके पे जी। ज्वाइन किया था। अच्छा, डिस्कशन के बारे में हमने बात कर ली। डिस्कशन इज नॉट द पार्ट ऑफ साइनॉप्सिस बट इट इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल। रिजल्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर synopsis, but once you are finished with your research and you have done your analysis, you are going to write your results, and once the results are there you will talk about your results, and that is discussion. So in discussion you are talking about your results in comparison with other studies which have been conducted throughout the world or in your own country. So this is discussion. Discussion हो गई। ethical consideration, ये जो आप स्टडी कर रहे हैं इसकी कोई एथिकल कंसिडरेशन तो नहीं है? मसलन ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर, या फीमेल सेक्स वर्कर्स पाकिस्तान के अंदर, या चर्च पीने वाले, सब्सटेंस अब्यूज वाले बंदे, ये सारे जो हैं इनको तो कोई भी पकड़ के मार सकता है। कुछ मजहबी लोग इनको मार सकते हैं, और आप इनके नाम अपनी रिसर्च में लिखते हैं और आप एथिकली उनकी किसी कैजुअलिटी का सबब बन जाते हैं या उनको कोई डैमेज हो जाता है, तो you have contributed to research or you have contributed to something else, खराबी हो गई। तो एथिकल कंसिडरेशन में आप ये ख्याल रखते हैं। दूसरी बात ये कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने 4th ईयर के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, नॉन मेलिफिशेंस, नुकसान नहीं पहुंचाना, बेनिफिशेंस, फायदा पहुंचाने, ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी की बात नहीं बतानी। अब जैसे मैं करता हूं तो मैं फैमिली काउंसलिंग करता हूं तो रिलेशनशिप इश्यूज पे मैं एक कपल की बातें दूसरे को बता दूं, इस हद तक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। और उसकी एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से देता हूं। अ फीमेल हु डाइड, शी वाज वाइफ ऑफ समबडी, अफजर। तो वो दोनों मियां बीवी मेरे पास सलमान कफील मेडिकल सेंटर यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आते थे, और दोनों को नहीं पता था कि वो मेरे पास आ रहे हैं, मतलब एक को नहीं पता था कि दूसरे का, सॉरी। तो कभी भी नहीं, शी द फीमेल डाइड, आई नेवर टोल्ड उसके हस्बैंड को कि भाई आपकी वाइफ मेरे पास आती रही है। दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। काउंसलिंग के लिए वो नहीं चाहती थी तो नहीं चाहती थी, फौत हो गई, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, उसका हस्बैंड अभी भी आता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई बंदा अपना नाम नहीं बताना चाहता, अपनी बात छुपाना चाहता है, उसकी ऑटोनॉमी है। बाहर के मुल्कों में तो एथिकल कंसिडरेशन ये भी है कि कोई बंदा मरना चाहता है तो उसे मार दें, अगर उसकी डिसीजन है। बाहर उसको यूथनेसिया कहते हैं, मेर्सी किलिंग भी आप लोग कहते हैं उसको आम लफ्जों में। सो लीव इट। एथिकल कंसिडरेशन, आपने किसी के जाके उसे कहा कि आए जी, और आपने जाके तो उसे कहा कि अंदर चलें, अंदर जाके आपने तो उसे कहा मैंने सैंपल लेना है जी आपका, जाके आप उसके स्किन का एक पोर्शन जो है ना कट कर लेते हैं स्किन का टेक्सचर जानने के लिए। बहुत सारी स्टडीज हैं जहाँ स्किन लेनी पड़ती है, इजाजत आपने ली नहीं उसकी। आप उसकी कॉन्सेंट लेंगे, वर्बल कॉन्सेंट, रिटन कॉन्सेंट, और इसको कहते हैं इनफॉर्म। आपकी रिसर्च की वजह से उसकी बदनामी हो गई, उसने किसी को नहीं बताना था। कई बातें जो एथिकल कंसिडरेशन में आती हैं आप उसको क्लियर करते हैं कि वो नहीं है। आप अपनी साइनॉप्सिस में एथिकल कंसिडरेशन लिख सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं। लिख सकते हैं, इस पर कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन पब्लिश आर्टिकल में बहुत सारे जर्नल्स मांगते हैं, बहुत सारे जर्नल्स नहीं मांगते। लेकिन आपको कोई आर्टिकल पब्लिश करवाने के बाद के लिए अपने कॉलेज के एथिकल रिव्यू बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ती है। दिस इज एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन पे सिर्फ 4 दिन पीएचडी में हम लेक्चर सुनते रहे हैं, पता नहीं कितने, और फिर उसके पूरा, बल्कि ये कहना चाहिए पूरा हमारा कोर्स था। सो एथिकल
शहर के अंदर। मेरी स्टडी किसी और की के नुकसान का बायस तो नहीं बन रही किसी भी वजह से, किसी के पैसे जाए होने जरूरी ये रेफरेंसेस अलग है ये चीज। आपने डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, ये सिर्फ आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट साथ लगाना होता है। डिप्रेशन का टूल किस पे डिप्रेशन देख रहे हैं, क्वेश्चनर कौन सा था आपका जो लोगों को आपने फिल करने के लिए दिया, डेमोग्राफी का, नाम, एज, इनकम, या तुम कहाँ रहते हो, कितना सोते हो, क्या करते हो, मोबाइल कितना यूज करते हो, या आपने जो भी फिल करवाया है उसको कहते हैं डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। द रिसर्चर मस्ट अटैच as an annexure the performer or questionnaire with the help of which she or he intends to collect data. The performer questionnaire must match the objectives and must not contain irrelevant sections. आपने उसके अंदर ये नहीं लिखना आप स्लीप पे बात कर रहे हैं तो आप कहें कि ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा जी क्या काम करते हैं, या पिछले साल तुमने शीशा पीने कितनी दफा गए थे, इसका कोई ताल्लुक नहीं उससे। जैसे इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने नहीं लेनी। ये जनाब आपका सारा प्रोसीजर है, और अभी जब हम जा रहे हैं अभी भी लोग आ रहे हैं, लोग इतने डेडिकेटेड हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट इट इज फिनिश्ड। और अब कितने मिनट रह गए हैं जी? So 7 minutes. 7 मिनट्स है, इसमें हम कंक्लूड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें इसको, अगर किसी का क्वेश्चन है तो। एक तो ये है कि कंटिन्यू विद इट, ये एक सिंपली एक सेंसिटाइज करने वाला है, इसको टीजर कह लें, इट्स अ टीजर फॉर रिसर्च। When we would talk about study designs का बात होगी, synopsis तो लिखी जाएगी, अगेन अंडर सुपरविजन synopsis आप लिखेंगे। प्रपोजल क्या होती है, आगे कैसे जाना है। तो आई फील वेरी आई मीन एंथुसियास्टिक एंड इन्वॉल्व्ड अगर स्टूडेंट्स इसमें आते हैं। अदरवाइज सच्ची बात है कि मैं बगैर किसी मकसद के काम करने को दिल नहीं चाहता। इफ यू हैव अटेन्ड समथिंग फ्रॉम दिस, if there is I prove to be bit useful for you, तो we can continue with it। लेकिन आपको ये लगेगा कुछ लोगों को कि भाई ये तो बहुत थोड़ा हमें मिला है, तो इतने टाइम पे आप देख लीजिए कि एक टॉपिक जिसके लिए आप मुझे सोच रहे थे कि आपको आधा घंटा पौना घंटा दें सर को, तो ये इतना टाइम पे भी हम इतना डिस्कस किया है। अदरवाइज अगर हम आगे ये कर सकते थे कि हम आर्टिकल्स उठाते, उनको हम लाइन वाइज देखते, और हर चीज पे बहुत ज्यादा मजीद एक्सटेंडेड डिस्कशन होती। लेकिन अगेन दिस इज साइनॉप्सिस। कुछ चीजें इसके अंदर मैंने ऐड की जो कि आर्टिकल में ऐड करते हैं, जैसे रिजल्ट्स और डिस्कशन इसमें नहीं होते, रिकमेंडेशंस नहीं होती, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं कोई लोग मांगते हैं कुछ नहीं मांगते। हाइपोथेसिस कई दफा नहीं शामिल लोग करते, रैशनल होना चाहिए। और ये साइनॉप्सिस थी। साइनॉप्सिस और प्रपोजल में मैंने डिफरेंस आपको बताया। और फिर आगे थीसिस और डिसर्टेशन क्या होते हैं, वो बड़ी चीजें होती हैं। लेकिन प्रपोजल एक बड़ी डॉक्यूमेंट होती है, और प्रपोजल भी छप जाता है। प्रपोजल जो है उसको भी रिजल्ट से पहले, रिसर्च कंडक्ट करने से पहले लोग प्रपोजल छपवा देते हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज कहिए इससे पहले कि वी फिनिश इट। So कोई क्वेश्चन है तो you can either use the mic or the chat box. Please ask. और इसके अलावा सर आई वुड लाइक टू मेंशन कि हम इस वर्कशॉप के बाद, कल के दिन के बाद, वी वुड मेक रिसर्च ग्रुप्स। तो उसमें ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस वर्कशॉप, तो उसमें हम आपको भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप सुपरवाइज कर सके जो भी काम करेंगे स्टूडेंट्स। नहीं ओके ठीक है, आप ऐड करें, फिर आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, फिर हम इसको, अगर किसी ने पूछना है कोई सवाल तो पूछ लें। आप इसकी रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? जी
ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आप मुझे जो ना वी ट्रांसफर के जरिए आपको वी ट्रांसफर का पता है ना? वी ट्रांसफर इज अ वेबसाइट जहाँ पे आप 2 GB तक डेटा किसी को भेज सकते हैं। तो आप मुझे मेरे ईमेल पे वी ट्रांसफर के जरिए ये फाइल भेज दीजिएगा, ठीक है? Sure, थैंक sir. यू। ओके जी, अब आप इजाजत दीजिए और हम खत्म करते हैं आज की। और आगे भी अगर आपका कोई जेन्युइन आपने शुरू किया या आपकी कोई इंटरेस्ट डेवलप होती है तो वी वुड कंटिन्यू इट। ठीक है जी, ओके देन, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज सर। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। Thank you so अल्लाह much, sir, for your time and for collaborating. Thank you so much. Thank you, sir. Allah Hafiz. हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम Allah सलाम। Hafiz. ठीक है, मेरा मीटिंग क्लोज कर दें आप। All right. या कुछ अनाउंस करना है?